Ashish Gupta welcomes you all on behalf of Jaipur branch of CIRC of ICI to the virtual webinar on GST. Today, we have with us C. Anil Kumar Yadav sir, Chairman, Jaipur branch, C. Kuldeep Gupta sir, Secretary, Jaipur branch, C. Sharad Kabra sir, and speaker of today's session, CA and Advocate Ravi Gupta sir. The topic of today's webinar is how to deal with show cause notices, appeals, and advanced ruling under GST. Now, I would request C. Sharad Kabra sir to address the webinar. C. Sharad Kabra sir is a well-known practicing chartered accountant and also past secretary of Jaipur branch of ICI and Maheshwari Samaj. Over to you, sir. Thank you, my dear Ashish, and a very warm good afternoon to all my professional brothers and sisters present over here. Today, we are here to discuss three very important provisions of GST law, with which we are and we will mingle in times to come, because now GST law is almost 3.5-year-old baby. Nowadays, we all are getting show cause notices for one or another matters. Appeals filing has been started, and we are regularly filing applications under advanced ruling to get some clarity on disputed questions of law. Today's topic will be dealt in detail by young energetic member of our branch, CA Advocate Ravi Gupta, but being I have been invited to put before a special address, I will briefly touch the topic and some problem areas which are and which will be faced by all of us in times to come. We need to be very cautious in future while dealing in GST matters. Section 73 of GST Act deals with show cause notice. Show cause notice is to be issued before any penalty is levied or demand is raised. Show cause notice is also required to be issued while taking action for payment of goods and service tax collected from any person which has not been deposited with the government authorities. We need to check whether the show cause notice has been issued by proper authorized officer, and not only that, we have also to check whether it is within time or not. Demand and recovery through show cause notice can be initiated for short levy, non-levy, short paid, non-paid, erroneous refund, wrong availment, and incorrect utilization of input tax credit. All demands and recoveries proceedings under GST starts with the issuance of show cause notice. So friends, show cause notice will play a very important role in times to come. In simple words, show cause notice is a formal communication to a person asking to explain his side for the issue mentioned in the notice. Here, word issue mentioned in the notice is a very important thing. We have number of judgments of apex court which shows the importance of notice. Supreme Court in the case of Vrindavan Beverages Limited observed that the show cause notice is the foundation on which the department has to build up its case. If the allegations in the show cause notice are not specific and are on the contrary vague, lack details, then that is sufficient to hold that the notice recipient was not given a proper opportunity to meet the allegations indicated in the show cause notice. In the second case, Supreme Court held in case of Madhumilan Syntax Limited that any demand raised without issuing show cause notice is or granting a hearing would be invalid. That means department has to issue a valid show cause notice before initiating any proceedings against the client. In case of Kosan Metal Products Limited, Supreme Court held that show cause notice is a necessary before adjudication. Mere noting in the periodical returns is not a notice one. So they need to issue a proper notice before taking any adjudications matter. In case of Balarpur Industries, Supreme Court held that the show cause notice is the foundation in the matter of levy and recovery of duty, penalty, and interest. Where a certain matter has not been invoked in the show cause notice, it would not be open to the central access officer to invoke the same subsequently. That means, अगर कोई मैटर आपने शो कॉज नोटिस में इनिशिएट नहीं किया है, तो ये ओपन नहीं है कि भविष्य में कभी भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज उस चीज को टेक अप कर लें इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स. Whatever matter has been covered in the show cause notice, department can only pursue all these matters. In case of Toyo Engineering Limited, Supreme Court held
that where a certain grounds were not mentioned in the show cause notice, the department could not be traveled beyond the show cause notice. Again and again, department has reiterated and Supreme Apex Court has reiterated that whatever things has been stated in the show cause notice, only these can be dealt with in the future course of proceedings. So in nutshell, the moment we get a show cause notice, we should minutely study the same, because that notice will build the base for the future course of action in our case. Rest of all provisions of show cause notice will be taken up by the dynamic speaker in detail after a few minutes. Now the second topic of today's lecture is appeal. Section 107 of CGST law deals with the appeal. We all know that when GST law came and introduced initially in July 2017, in financial year 2017-18 and 18-19, how the return has been filed from our offices, we all know. Majority of returns are incomplete or defective and are not matching with the actual books of accounts. I do not blame anyone, because all our staff members were untrained at that time, and they file the return as in they feel comfortable. Many SSCs and their accountants were started filing GST returns on their own. उन्होंने देखा कि सिंपल है, GST पोर्टल पे लॉगिन करो, फिगर डालो, रिटर्न भरो, तो they started filing the returns on their own. Now, when all these returns will be scrutinized and assessed, we will get good number of show cause notices, and subsequently after getting demand notices, appeals will be increased in good number. So we have to be geared up to file good number of appeals in times to come. Before filing of appeal under GST, we need to deposit entire admitted tax, interest and penalty and 10% of disputed demand. Looking to likely future disputes and size of demands, I think this 10% will be a very burdensome for the assessees. Government should reconsider this 10% limit and should reduce for at least few years next. Now, the third topic which we are covering today is advance ruling. As we all know, that section 95 of CGST deals with advance ruling. We normally apply to authority for advance ruling to obtain clarity on some question of law or question of facts. Sometimes we get confused with the advance ruling provided in case of some other cases, and by applying that judgments in our case, we change our decision. It is very important to understand that advance ruling is based on the specific facts of the particular case and is applicable only and only to that particular case in which it is being provided. So we cannot apply or use the judgment in our case blindly. If we see the precedents, maximum advance rulings are pro-revenue. That means they are in favor of departmental revenue authorities. So before applying for any advance ruling, we should take a conscious call whether we have to apply it or not. Rest all matters will be dealt in detail by young dynamic speaker of today's topic. I place on my record my sincere gratitude to the branch chairman Anil Yadav for inviting me to share some of my small thoughts. Jai Hind, and thanks once again. Over to moderator of the program. Thank you. Thank you, sir, for your words. Now, without wasting our time, I would like to request our speaker, CA and Advocate Ravi Gupta, sir, to start the session. Ravi, sir, is a qualified chartered accountant, company secretary, lawyer, and diploma in labor law with all India ranks at various levels. He has 7 years of experience and specialization of litigation in central excise, service checks, GST, and taxation fields. He is also an active speaker at various tax and trade associations, news channels, All India Radio, various branches, and also at various branches of ICI, ICSI, and ICWA. Over to you, Ravi, sir. Thank you so much, Ashish ji. First of all, I am thankful to Jaipur chapter of ICI for giving me this wonderful opportunity. CA Sharad Kabra sir, the senior member of the profession, or dynamic chairman CA Anil Yadav ji, or secretary CA Kuldeep Gupta ji, and all other esteemed professionals. Today we are dealing with the topic which is जनरली नोट डेल्ट बाय द स्पीकर्स. अभी तक हमने जो जीएसटी में सेशंस डिस्कशन लिए हैं, तो हमने ज़्यादातर एनुअल रिटर्न्स ऑडिट के बारे में बातें की हैं, बट आज हम इस टॉपिक को ले रहे हैं जो इनसे थोड़ा सा अलग है और
इनके पहले या बाद की स्टेज है। सबसे पहले लिटिगेशन नहीं हो, इसके लिए एडवांस रूलिंग हम कवर करेंगे आज के टॉपिक में, आज के सेशन में, कि कैसे हम डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज के एक्शन से बच सकते हैं, हमारे एसएससीज को, टैक्स पेयर्स को, क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर डिपार्टमेंटल एक्शंस इनिशिएट हो जाते हैं तो हमको किस तरीके से उनको डील करना है, हमें रिप्लाई किस तरीके से करना है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, रिप्लाई करते समय शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर शोकॉज नोटिस के रिप्लाई के बाद में भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है, हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आ पाता है, तो हमें अपील्स का किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इन सब बातों को आज के टॉपिक में हम आज के सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस रूलिंग के बारे में हम डिस्कशन कर पाएं, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चल पाएं। सबसे पहले हम एडवांस रूलिंग इसलिए ले रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम लिटिगेशन में एंटर होने से बच सकते हैं। उसके बाद में एंटर अगर हो गए तो वो किस तरीके से एंटर होते हैं, और उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमको कंटेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद में हम अपील। और रूलिंग का मतलब जैसा हम जनरल जो ट्रेड पार्लेंस में यूज करते हैं, जजमेंट के लिए हम रूलिंग को यूज करते हैं, ऑर्डर के लिए, जजमेंट के लिए। तो कोई रूलिंग ऐसी जो एडवांस में ली जाए डिपार्टमेंट से, उसको एडवांस रूलिंग कहते हैं। दिस इज बेसिकली रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज बाय द टैक्स अथॉरिटीज। अब अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, दोनों बातों में ही हम दोनों बातों के लिए एडवांस रूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो काम हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं उसके लिए हम एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते। कि मिसकंसेप्शन है, क्योंकि पहले के लॉज, इनकम टैक्स लॉज में जो एडवांस रूलिंग के प्रोविजंस थे वो कुछ डिफरेंट तरीके से थे, और उसमें जो एक्टिविटीज हम प्रपोज कर रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम एडवांस रूलिंग में जा सकते थे। लेकिन जीएसटी लॉ में इसका स्कोप काफी वाइड कर दिया गया है, और अथॉरिटीज भी काफी ज्यादा, नंबर ऑफ अथॉरिटीज की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। पहले एडवांस रूलिंग केवल दिल्ली में हुआ करती थी, अभी एडवांस रूलिंग हर एक स्टेट में अवेलेबल है। और एडवांस रूलिंग में जो अथॉरिटीज होती हैं वो एक सेंट्रल के ऑफिसर होते हैं, सेंट्रल टैक्स के, जिसको पहले सर्विस टैक्स, एक्साइज और कस्टम्स डिपार्टमेंट कहा जाता था, अभी उसको सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंडर में वो काम करते हैं। और दूसरे ऑफिसर स्टेट टैक्स से होते हैं, और ये दोनों ही ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर रैंक से बिलो नहीं होते हैं। एडवांस रूलिंग में अगर हमें कोई कंफ्यूजन है, कोई अनसर्टेनिटी है किसी टैक्स के प्रोविजन से रिलेटेड, तो हम एडवांस रूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस रूलिंग में क्या क्या बातें हैं, किन किन टॉपिक्स पे एडवांस रूलिंग ली जा सकती है, क्या सभी टॉपिक्स पे ली जा सकती है या क्या स्पेसिफिक टॉपिक्स उन पे ली जा सकती है, ये हमको डिटेल समझनी है और वन बाय वन प्रोविजन डिस्कस करने हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि व्हेन कैन वन रिक्वेस्ट फॉर जीएसटी एडवांस रूलिंग। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एनी टैक्स पेयर कैन रिक्वेस्ट फॉर एडवांस रूलिंग व्हेन ही इज अनसर्टेन अबाउट द प्रोविजंस। एडवांस रूलिंग इज एप्लीकेबल ऑन, इन टॉपिक्स पे केवल एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। इनके अलावा कोई भी इश्यूज हैं तब हमें एडवांस रूलिंग के प्रोविजन इनेबल करने का राइट नहीं है। एडवांस रूलिंग हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड अगर हमें कोई कंफ्यूजन उसके लिए ले सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन है जिसमें एम्बिग्यूटी है या कोई वैग नोटिफिकेशन है, हम समझ नहीं पा रहे कि वो नोटिफिकेशन हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो वी कैन अप्लाई फॉर द एडवांस रूलिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम एडवांस रूलिंग अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली दो स्टेट्स के बीच का इश्यू रह जाता है, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज हर एक स्टेट के अलग अलग हैं। जैसे राजस्थान की एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज हैं, और हम अगर कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं इंटर स्टेट और हमें कंफ्यूजन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो उस केस में अगर हम राजस्थान की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन लगाते हैं एडवांस रूलिंग के लिए, तो ये जायज सी बात है कि वो प्रो रेवेन्यू होंगे और वो अपने स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो बायसनेस वहां पे आ सकती है। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड एडवांस रूलिंग के प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं। प्लेस ऑफ रूलिंग, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड हम एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वेदर आईटीसी पेड विल बी अलाउड, आईटीसी एक बहुत बड़ा इश्यू है।
हर दिन देखते हैं कि आईटी से रिलेटेड नए नए मुद्दे आते हैं और हमें कंफ्यूजन रहता है, क्लाइंट्स की क्वेरीज भी सबसे ज्यादा आईटी से रिलेटेड ही आती हैं कि हमें स्पेसिफिक सर्विस पे या गुड्स पे सप्लाई पे आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आईटीसी से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम आईटीसी से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एडवांस रूलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। लायबिलिटी टू पे टैक्स, अगर कोई भी गुड सर्विसेज है, हमें डाउट है कि ये नील रेट है इसकी या फिर इसकी रेट 12% है या 18% है या डिफरेंट स्लैब्स में वो फॉल कर रहा है और हम सर्टेन नहीं हो पा रहे हैं कि ये किस स्लैब में फॉल करेगा, तो वी कैन अप्लाई फॉर द एडवांस रूलिंग। वेदर द एप्लीकेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि कई सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनमें ये कंफ्यूजन था कि एडवांस रूलिंग लगाने से पहले कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी है या नहीं है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक एसएससी थे जयपुर के, टैक्स पेयर थे, और उन्होंने श्री सीमेंट से इलेक्ट्रिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट लिए उनकी साइट्स के लिए। उनकी साइट्स कर्नाटका में चल रही थी और वो जयपुर से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे। तो उनको ये कंफ्यूजन था कि हमें कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है या नहीं है। तो इसके लिए हमने एडवांस रूलिंग फाइल की और हमने एडवांस रूलिंग में ये मेंशन किया, एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन में हमको ये मेंशन करना पड़ता है कि किन पॉइंट्स पे हम एडवांस रूलिंग लेना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं हमारी जानकारी में वो क्या क्या हैं और हमारा व्यू उसमें क्या बनता है, ये सब बातें हमको उसमें मेंशन करनी होती है। तो हमने उसमें मेंशन किया कि कर्नाटका में हमारा फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हम केवल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे हमारे सर्विसेज देंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। उसके बाद में हम हमारी दूसरी साइट पर शिफ्ट हो जाएंगे। जबकि हमारे को वहां पे प्रोमाइसेस दी गई थी, जो अवार्डर था जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था श्री सीमेंट ने, वहां प्रोमाइसेस दी गई थी, लेकिन वो फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। जिन एसएससी का उस पर कोई पोजीशन नहीं था, ना वो रेंटेड प्रोमाइसेस थी। तो एडवांस रूलिंग अप्लाई करने के बाद में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कर्नाटका ने कहा कि आप पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी लायबिलिटी नहीं है, आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऑपरेट कर सकते हैं। अब इस तरह की इश्यूज में हम एडवांस रूलिंग अगर अप्लाई कर देते हैं तो पीस ऑफ माइंड रहता है और आगे की लिटिगेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लिटिगेशन से। अदरवाइज देयर माइट बी सिचुएशन कि Karnataka authorities can issue the notice that why the SSC was not registered. They can raise the demand on that basis. But since we have taken the advance ruling, so we are safe now. There is no need, there is no implication, no litigation in future will be there. तो इस तरीके से हम एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी इश्यूज में एम्बिग्यूटी होने पर। Whether any particular thing done by the applicant regarding good service will result in a supply. अब कोई चीज सप्लाई है या नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी, क्या वो सप्लाई है या नहीं है, ये भी हमें एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से पूछने का राइट है। हम उनसे ये पूछ के और अपनी जो क्वेरी है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं व्हेन विल द अथॉरिटी गिव देयर डिसीजन। अब देखिए, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, उनके सामने एप्लीकेशन फाइल करने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कि हम एडवांस रूलिंग तो फाइल कर देंगे बट डिसीजन कब तक आएगा इसका क्या पता, क्योंकि हमें अगर एक्टिविटी शुरू करनी है अभी बहुत जल्दी और एडवांस रूलिंग का टाइम अगर बहुत ज्यादा लगे तो हमें एडवांस रूलिंग लेने से फायदा क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक लिमिटेड टाइम प्रेस्क्राइब किया है, 90 डेज के अंदर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को डिसीजन पास करना पड़ेगा। और यही सेम प्रोविजन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के रूलिंग के अगेंस्ट में अगर अपील फाइल करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 90 डेज का टाइम ही अपीलेट अथॉरिटी को दिया गया है एडवांस रूलिंग जारी करने के लिए। If the members of the authority differ in opinion on any point, they will refer the point to the appellate authority, and if the members of the appellate authority differs, it shall be deemed that no advance ruling can be issued. इसका मतलब ये है, जैसे राजस्थान में जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है उसमें 2 मेंबर्स हैं, एक स्टेट टैक्स के ऑफिसर हैं और एक सेंट्रल टैक्स के। अगर उन दोनों ऑफिसर्स की ओपिनियन रूलिंग देने के लिए डिफरेंट है, उस केस में क्या होगा। अगर मानिए कि हमने एडवांस रूलिंग फाइल की कि इस पे 18% रेट लगेगी, 12% लगेगी कोई सप्लाई पे, और एक ऑफिसर कहते हैं 18% लगेगी, दूसरे ऑफिसर कहते हैं 12% लगेगी, तो उस केस में जब उन दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं है तो दे कैन रेफर दैट रूलिंग एप्लीकेशन टू द अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अपीलेट अथॉरिटी भी हर एक स्टेट में है और सीजीएसटी के जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं प्लस एसजीएसटी के जो कमिश्नर हैं, इन दोनों की टीम से अपीलेट अथॉरिटी फॉर्म होती है। उनको हम
एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट में अपील भी फाइल कर सकते हैं, और अथॉरिटीज को, एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज को अगर कोई कंफ्यूजन है, उनकी कंसर्न्स नहीं बन रही है, तो वो उस केस को रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपीलेट अथॉरिटी की भी अगर कंसेंट नहीं बनती आपस में, उनके विचार जो है नहीं मिलते हैं, उनकी ओपिनियन डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपकी एडवांस रूलिंग की फीस है वो वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि उस केस में लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर अपीलेट अथॉरिटीज भी उनकी ओपिनियन डिफरेंट है, तो फिर वो एक जारी कर देंगे रूलिंग, और उसमें वो मेंशन कर देंगे ऑर्डर में कि एडवांस रूलिंग इस पॉइंट पे दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो हमें फिर उस केस में एडवांस रूलिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और जो हमारी फीस और हमारी जो एफर्ट्स हैं वो खराब चले जाएंगे। तो एडवांस रूलिंग विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पुरानी डिमांड है, डिमांड डिपार्टमेंट ने रेज कर दी, और फिर हम एडवांस रूलिंग अप्लाई कर दें और ऑफिसर को बाउंड कर देंगे कि साहब हमारा तो ये ऑर्डर आ गया, हमारी तो रूलिंग आ गई, और आपने जो नोटिस दिया है उसके अगेंस्ट में रूलिंग है, हमारे फेवर में रूलिंग आई है, तो आप ये डिमांड ड्रॉप करो। तो एडवांस रूलिंग का जो इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। लेकिन हम रेफरेंस के लिए काम ले सकते हैं इसको, लेकिन डिपार्टमेंट इससे बाइंड नहीं होगा रेट्रोस्पेक्टिवली। एडवांस रूलिंग जारी करने के बाद में अगर कोई इसमें अपेरेंट मिस्टेक रहती है, तो जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है वो खुद, या अपीलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपने आप, या फिर जो एप्लीकेंट है वो उनके ध्यान में उस मिस्टेक को लाता है, तो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रूलिंग दे कैन रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स इन द एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन, इन द एडवांस रूलिंग। आपके अगर कोई इश्यूज साथ में हो, तो आप चाहें तो उनको गैदर करके लास्ट में हम डिस्कशन कर लेंगे, और अगर आप चाहें मॉडरेटर को जैसा कंफर्टेबल हो, तो हम साथ में भी इश्यूज ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सर, चैट बॉक्स में वो डाल सकते हैं, जो भी किसी को इश्यूज हैं दे कैन राइट इट ऑन चैट बॉक्स। ठीक है सर, मैं चैट बॉक्स फिर ऑन कर लेता हूँ मेरा, सो दैट आई नहीं, कैन। चैट बॉक्स में आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ओके। ऑन whom will the एडवांस रूलिंग अप्लाई? एडवांस रूलिंग किस पे अप्लाई होगी? अगर ए ने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया है, ए एक टैक्स पेयर है, उन्होंने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया है, तो क्या उस रूलिंग से सभी लोग बेनिफिट ले सकते हैं? जैसे हम आए दिन एडवांस रूलिंग आती है, हम मैगजीन्स में देखते हैं, हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे आती है, तो क्या उस इशू को हम हमारे लिए यूज कर सकते हैं? तो ये बहुत कॉशियसली हमको यूज करना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है कि एडवांस रूलिंग जिस एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया है और जो उनके जुडिशनल ऑफिसर्स हैं, केवल उन दोनों पे बाइंडिंग है वो, और किसी भी एसएससी या किसी भी जुडिशनल ऑफिसर के लिए वो बाइंडिंग नहीं है। और जैसे ए और बी एक ही जुडिशन में फॉल करते हैं, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है, उनका जो जीएसटी के जुडिशनल ऑफिसर है वो सेम है। अब अगर उसी जुडिशनल ऑफिसर के पास में किसी बी की भी फाइल है, और ए ने जिस मैटर पे एडवांस रूलिंग ली है और बी का भी वो सेम इशू है, तो क्या ये बी कंटेस्ट कर सकता है, या क्या ये बी डिपार्टमेंट को बाउंड कर सकता है कि ए के केस में एडवांस रूलिंग जारी हुई है और आप ही उसके जुडिशनल ऑफिसर हो, मेरे ऑफिसर भी आप ही हो, तो वो मेरे पे भी लागू हो? तो लॉ में ये क्लियर है कि जो एप्लीकेंट है और जो जुडिशनल ऑफिसर उस एप्लीकेंट का, केवल उसी पे लागू होगी वो। इसके बाद में, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, अगर अथॉरिटी चेंज हो गई, जुडिशनल टैक्स ऑफिसर चेंज हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका रेंज 1 में है और रेंज 1 में कोई भी ऑफिसर है चाहे वो, तो रेंज 1 में वो एप्लीकेबल होगी हमेशा। लेकिन अगर एडवांस रूलिंग जारी होने के बाद में फ्यूचर में कोई फैक्ट्स में चेंज हो गया या फिर कोई प्रोविजन में चेंज हो गया, तो फिर हम उस एडवांस रूलिंग का बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें मेंशन भी किया है मैंने, if the law facts of the original advance ruling changes, then the advance ruling will not apply. 6 months के अंदर हम एडवांस रूलिंग में रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, बात ही होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, एडवांस रूलिंग फाइल करते समय अगर हमने कोई सपरेशन किया है, कोई फैक्ट्स गलत बताए हैं, कोई मेटल स्टेटमेंट दिया है, तो उस केस में अथॉरिटीज एडवांस रूलिंग जो जारी की गई है उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, और आप उसके अनुसार अपनी जो टैक्स प्लानिंग है, जो हमारे इश्यूज हैं, उनको रिजोल्व नहीं कर पाएंगे, उनके हिसाब से आप काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड्स, ये हमारी बात होगी एडवांस रूलिंग की। अपीलेट अथॉरिटी भी 6 मंथ्स के अंदर एडवांस रूलिंग में रेक्टिफिकेशन कर सकती है।
अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी जो है उसको अपील कब की जा सकती है? अगर एडवांस रूलिंग से हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं। अगर सेटिस्फाई है तो वेल एंड गुड। लेकिन अपीलेट अथॉरिटी के बाद में कोई भी अपीलेट फॉर्म नहीं है। केवल एडवांस रूलिंग के लिए दो ही अथॉरिटीज हैं, फर्स्ट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एंड सेकंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अपीलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में हम कहीं भी अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। वो जो रूलिंग है वो फुल एंड फाइनल होगी और उसमें कोई भी चेंज की गुंजाइश नहीं होगी। इसके बाद में अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, जो एडवांस रूलिंग हम अप्लाई करते हैं वो ARA 01 फॉर्म में अप्लाई करते हैं और अपील टू अपीलेट अथॉरिटी ARA 02 फॉर्म में होती है। एन अपील अगेंस्ट द एडवांस रूलिंग इशूड accompanied by a fee of 10,000 rupees each under CGST and SGST shall be made on the common portal in form GST ARA 02। अगर हम एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं, फीस है, वो 10,000 है, 5,000 CGST में, 5,000 SGST में। जबकि अगर हम एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट में अपील फाइल करते हैं तो उसके चार्जेस डबल हैं क्योंकि ऑफिसर्स भी बड़े हो गए और फॉर्म भी बड़ा हो गया। तो उस केस में जो चार्जेस है वो 20,000 होंगे, फीस 20,000 रहेगी गवर्नमेंट की। एन अपील अगेंस्ट द एडवांस रूलिंग बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर फॉर द जुडिशियल ऑफिसर शैल बी मेड ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म GST ARA 03 एंड नो फी शैल बी पेएबल बाय द सैड ऑफिसर फॉर फाइलिंग द अपील। अब देखिए, अगर आपकी एडवांस रूलिंग आ गई आपके फेवर में, लेकिन डिपार्टमेंट को लगता है कि डिसीजन जो है वो सही नहीं है, वो डिटरमिनेंटल टू द रेवेन्यू है या फिर प्रॉपर्टी वो पूरा नहीं करता है, तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की रूलिंग के अगेंस्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं और उनको कोई भी फीस जमा करानी नहीं पड़ेगी। अगर एसएससी करता है तो उसको 20,000 रुपीज जमा कराने पड़ेंगे, बट डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को ये बेनिफिट है या उनको ये वेव की गई है कि उनको कोई भी चार्जेस जमा नहीं कराने पड़ेंगे, दे कैन फ्रीली फाइल द अपील। अब स्टेप्स फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का जो प्रोसीजर है वो पूरा ऑनलाइन है। हम ARA 01 फॉर्म फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो भी फाइल कर सकते हैं। अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है तो हम अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट बनके टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेके अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट का, और फिर हम एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हमको GST पोर्टल पे लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाने के बाद सर्विसेज में जाके यूजर सर्विसेज और माई एप्लीकेशंस में जाना है और एप्लीकेशन टाइप हमको एडवांस रूलिंग सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में अगर हमने पहले से कोई सेव कर रखी है तो हमको पीरियड डालने के बाद में वहां मेंशन हो जाएगा, आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो। अदरवाइज न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और हमको आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए, आप ये स्क्रीनशॉट है यूजर सर्विसेज में जाने के बाद माई एप्लीकेशन, इस पे एडवांस रूलिंग। अगर आपकी पहले से एप्लीकेशन फाइल की हुई है तो हम उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे पीरियड मेंशन करने के बाद में। अदरवाइज हम न्यू एप्लीकेशन ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में स्टेप्स ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन में हमको ये मेंशन करना पड़ेगा कितना कितना पैसा लगेगा, तो 5,000 ईच CGST SGST में जमा होगा और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी और उसमें जो मेंशन है वो सारी बातें हमको उसमें इंसर्ट करनी पड़ेंगी। जो प्रोविजंस हैं हमें मेंशन करने पड़ेंगे, ग्राउंड्स हमारे लेने पड़ेंगे और फिर हमको रूलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और रूलिंग अप्लाई करने के बाद में जो अथॉरिटी है वो आपके जुडिशियल टैक्स ऑफिसर से, हमारे जुडिशियल टैक्स ऑफिसर से कमेंट कॉल फॉर करेंगे वो, और उनकी राय जानने के बाद में हमारे सबमिशंस को एग्जामिन करने के बाद में वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमको देंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। दिस इज बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। हम हमारी बात कुछ ऐड करना चाहते हैं रूलिंग की एप्लीकेशन में और कोई सबमिशन देना चाहते हैं, वो हम उसमें मेंशन कर पाएंगे हियरिंग के टाइम पे। और हम ओरली कोई बात जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं अक्रॉस द टेबल, वो हम ऑफिसर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस तरीके से एडवांस रूलिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी और उसके बाद में जो अथॉरिटीज है वो एडवांस रूलिंग जारी करेगी। एक कॉपी वो एप्लीकेंट को और एक कॉपी वो जुडिशियल टैक्स ऑफिसर को, दोनों को सेंड करेंगे और वो दोनों उससे बाउंड होंगे। आगे उसको उसी हिसाब से काम करने के लिए, उसी अकॉर्डिंग कंप्लायंस करने के लिए वो बाउंड होंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एडवांस रूलिंग फाइल होने के बाद में कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज या कोई भी अथॉरिटी उसको चैलेंज नहीं कर सकती है, वो सही है या गलत है,
अगर वो रूलिंग चैलेंज नहीं की गई है तो वो फुल एंड फाइनल है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन फाइल करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो बाहर के एसएससीज हैं जो चाहते हैं कि हमें कोई कल को दिक्कत नहीं आए, तो वो एडवांस रूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। इससे हम जो लिटिगेशन है उसको बचा सकते हैं, कॉस्ट लिटिगेशन को हम फ्रीली बिजनेस कर सकते हैं। एफडीआई इससे अट्रैक्ट होता है क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ये चाहती नहीं है कि कल को कोई दिक्कत हो, कल को कोई डिमांड रेज हो, लिटिगेशन में वो फंसना नहीं चाहती हैं, तो वो एफडीआई भी इससे अट्रैक्ट होता है। तो ये मोदी जी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक स्टेप है कि उन्होंने हर स्टेट में एडवांस रूलिंग की फैसिलिटी दी है। लेकिन कई जगह प्रॉब्लम ये आ रही है कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज एक ही इशू पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दे रही हैं, और कई ओपिनियंस ऐसी दे रही हैं वो जो कंप्लीटली प्रो रेवेन्यू रहती है, जो क्लियर कट ये दिखता है कि वो गलत दी गई है। तो अगर अथॉरिटीज सही सेंस में जुडिशियस काम करेंगी तो ही अथॉरिटीज का या एडवांस रूलिंग का हमको बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज ये भी एक टाइम का वेस्टेज रहेगा और कोई हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर ये सही तरीके से अथॉरिटीज उसका इंटरप्रिटेशन करती है तो बहुत बड़े अमाउंट पे लिटिगेशन रिड्यूस हो सकता है इससे, और एडवांस रूलिंग से स्मूथली बिजनेस आदमी रन कर सकता है। ये बेसिकली एडवांस रूलिंग से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो मैनुअल प्रोविजंस मैंने आपको बताए। ऑनलाइन फाइल होती है, 90 डेज के अंदर ऑर्डर आ जाता है, अगेंस्ट में हम अपील फाइल कर सकते हैं। अपील के बाद में और कोई प्रोविजन नहीं है। 10,000 फीस एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन के लिए और 20,000 है अपील के लिए, और इसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard दी जाती है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसा मैं आपको डिस्कस कर रहा था एक केस अभी, एक एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन जो कर्नाटक में फाइल की थी हमने। हमें कर्नाटक जाने का लगा कि कोई ऐसी बात नहीं है जो नई बात बताई जाए अक्रॉस द टेबल। रिटर्न में हमारे सारे सबमिशन हो गए, तो मैंने उसमें मेंशन किया कि हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard जो है उससे वेवर दिया जाए, हमें बिना ओरली सुने ही रिटर्न सबमिशंस को ओरल सबमिशन मानते हुए रूलिंग जारी की जाए। तो उस बेस पे बिना कर्नाटका गए, बिना अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट हुए और केवल मेल के बेसिस पे कि हमें पर्सनल हियरिंग नहीं चाहिए, उस बेस पे उन्होंने एडवांस रूलिंग जारी की, और जयपुर में बैठे बैठे ही हमको रूलिंग हमारे फेवर में आई और फायदा हुआ एसएससी को। और उसके बाद में टैक्समैन ने भी उसको कंसिडर किया, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का जो इशू है, दिस इज ए वेरी एम्बिगुअस प्रोविजन, और इसमें बहुत दिक्कत आती है कई बार, तो वो पॉइंट क्लियर हुआ। फिर इस तरीके से हम एडवांस रूलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद में एडवांस रूलिंग अगर हमने फाइल नहीं की, कोई इशू ऐसे हैं जो अनटच्ड रह गए, या फिर डिपार्टमेंट का और हमारा व्यू अलग है, या फिर हमने डेलिबरेटली कोई कंसीलमेंट किया है, हमने डिटेक्ट जो रेवेन्यू है उसका रिवीजन किया है, तो उस केस में डिपार्टमेंट के पास क्या राइट है, कैसे स्टार्ट करेगा। एक तो हमें पहले ये बात समझनी चाहिए कि शोकोज नोटिस तभी जारी किया जाता है जब डिपार्टमेंट के और आपके बीच में डिस्प्यूट है। आप अगर आपकी ओपिनियन डिफरेंट और डिपार्टमेंट की ओपिनियन डिफरेंट है तो शोकोज नोटिस जारी किया जाता है। अगर आपने रिटर्न में खुद ने ही डिक्लेयर कर दिया, जैसे आप जीएसटीआर 1 में आपने लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी एक्सेस में और 3B में आपने जमा कराई कम, जबकि एक्चुअल लायबिलिटी आपकी जीएसटीआर 1 में जो आपने डिक्लेयर की है वो ही थी, उस केस में डिपार्टमेंट शोकोज नोटिस जारी कर सकता है, और एक क्लोज दिया हुआ है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट डायरेक्टली भी रिकवरी शुरू कर सकता है, जैसे सर्विस टैक्स में भी हुआ करता था। अगर आपने रिटर्न्स में खुद ने डिटेल्स शो कर दी, खुद ने लायबिलिटी मेंशन कर दी, तो डिपार्टमेंट कैन स्टार्ट रिकवरी डायरेक्टली विदाउट इशूइंग शोकोज नोटिस। सो दीज प्रोविजंस आर आल्सो रिलेवेंट। अब हम बात करते हैं कि शोकोज नोटिस जारी क्यों किया जाता है, शोकोज नोटिस का मतलब क्या है, क्योंकि जो लोग वेट में डील कर रहे थे पहले। यस सर, प्लीज। सर एक डिस्टर्ब करूंगा आपको बीच में, एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन अभी ले लें। जी जी प्लीज बताइए। एडवांस रूलिंग पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन अप्लाई जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड एचएसएन कोड, मतलब एचएसएन कोड और जीएसटी गुड्स के ऊपर तीन क्वेश्चन एक बार में अप्लाई कर सकते हैं सर। एक बार में मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस कैन बी अप्लाइड इन वन गो, एक एप्लीकेशन में। के वेट के अकॉर्डिंग, वेट के ऊपर है ना। हाँ, कोई भी तरह की 3 क्वेश्चन ले लो आप, जैसे मानिए आपको रेट लेनी है, अब आप उसमें स्मार्टनेस कर सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन फ्रेम कर दें। जैसे मानिए कि आपको रेट लेनी है तो आप ट्राई ये करिए कि एक ही क्वेश्चन में आपने डालिए कि इस कोड में क्या क्या रेट्स होंगी, फिर सेकंड क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म करो, थर्ड डिफरेंट फॉर्म करो। अब इट डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटीज कि वो उसको एंटरटेन करते हैं नहीं करते, बट ये दिस इज सब्जेक्ट मैटर, ये जो है ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, बट इट डिपेंड्स टोटली ऑन द
जुडिशल अथॉरिटीज, बट जनरली जो लॉ में मेंशन है वो ये है कि 3 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इन एप्लीकेशन। ओके ठीक है सर, आगे चलें अपन अब। हाँ ठीक है, एडवांस रूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कोई हो आपके तो हम लास्ट में फिर टेकअप कर सकते हैं उनको। ठीक। देखिए शो कोज नोटिस बेसिकली 3 वर्ड से है। शो कोज नोटिस मतलब कारण, शो का मतलब आप बताइए, प्रेजेंट कीजिए, कोज मतलब कारण, और नोटिस मतलब सूचना। हमें कारण बताओ, सूचना दी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो ये पूछते हैं कि क्यों ना आपके अगेंस्ट में ऐसा कर दिया जाए, क्यों ना आपके अगेंस्ट में डिमांड रेज कर दी जाए, पेनल्टी कंफर्म कर दी जाए, इंटरेस्ट कंफर्म कर दिया जाए, या फिर जो आपने रिफंड ले लिया, जो रिफंड अनजुडिशियल था या उनके हिसाब से एज पर लॉ नहीं था, आउटसाइड द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ था, तो उसको रिकवर क्यों नहीं कर दिया जाए। तो शोकोज नोटिस कभी भी एसएससी के फेवर में जो केस उनके लिए जारी नहीं किया जाता। द इश्यूज व्हिच आर डिट्रीमेंटल टू द एसएससी and which are, I mean, adverse, that will adversely affect the SSC, that issues can only be raised by the show cause notice. The issues which are favorable to the SSC never raised by the show cause notice. ये आप ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट का जब रेवेन्यू लॉस होता है तभी शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है, अदरवाइज जारी नहीं किया जाता। अब ये शो कॉज नोटिस जारी करने की जरूरत क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? क्यों ना डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को अगर लॉ में कोई चीज मेंशन है और उनको लगता है कि ये प्रोविजन अप्लाई नहीं किया गया या एसएससी ने कंप्लाई नहीं किया या फॉलो नहीं किया, तो डायरेक्ट वो क्यों डिमांड जारी नहीं कर देते? तो इसका जो जेनेसिस है, जो इसकी शुरुआत है, वो मैग्ना कार्टा से हुई। 1215 में यूनाइटेड किंगडम में जो वहां की गवर्नमेंट थी उन्होंने मैग्ना कार्टा जारी किया, और मैग्ना कार्टा का मतलब जो उन्होंने जो व्हाइट पेपर जारी किया था उसमें उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को मेंशन किया। सबसे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब कहीं पे आपको अलग से कहीं पे प्रोविजन नहीं मिलेगा इसका कि नेचुरल जस्टिस किसको कहते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, बट जैसे जैसे लॉ इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे लिटिगेशंस बढ़े, डिफरेंट तरह की लिटिगेशंस आए, तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का उद्भव हुआ, और उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अब ये लॉ में मैंडेटरी कर दिया गया कि जहां तक स्पेसिफिकली मना नहीं है कोई भी लॉ में, ये ग्राउंड हम कहीं पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स कई बार कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस की वोलेशन हमने किया है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप बताइए कि लॉ में कहाँ मेंशन है, जीएसटी एक्ट में कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। जहाँ पे नहीं, जहाँ लिखा हुआ वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कई जगह पे ये चीजें मेंशन नहीं है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जो उसमें शामिल हैं, तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए ये चीजें मेंशन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो हमेशा हर एक प्रोविजन, हर एक लॉ में फॉलो किया जाएगा जब तक कि स्पेसिफिकली डिस्पेंस विद नहीं कर दिया गया हो। हम आगे इसको पढ़ते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें भी कई सारे आर्टिकल्स हैं जो नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 से लेके 32 में मेंशन है, उन आर्टिकल्स में भी नेचुरल जस्टिस के बारे में बताया गया है, और नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग ही वो राइट्स दिए गए हैं कि हर इंसान को सुनवाई का अधिकार है, राइट टू स्पीच है। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी एनश्राइन है। अब देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर दोज रूल्स which have been laid down by the courts। अब देखिए इसमें by the courts मतलब लेजिस्लेशन के द्वारा ये लॉ फ्रेम नहीं किया गया नेचुरल जस्टिस का, बट ये जो कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन से इवॉल्व हुआ है। एज बीइंग द मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में यहाँ पे कंपनी सब शामिल होंगे, अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी प्रोसीजर दैट मे बी अडॉप्टेड बाय ए जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। मतलब ये हमारे हम जो राइट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके मिनिमम राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाना जरूरी है, ताकि उनको जो मनमानी प्रक्रियाएं हैं जुडिशियल मेंबर्स की, या फिर जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, अर्ध न्यायिक बॉडी, क्वेशी जुडिशियल जो बॉडीज हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो गई, जैसे सुपरिंटेंडेंट हैं, अगर वो एज ए ऑफिसर काम कर रहे हैं, एज ए सर्च कर रहे हैं वो, या जो उनका डे टू डे वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, वो कर रहे हैं, at that time they are working as an administrative authority, but while passing the order, while issuing the notice, while I mean giving the opportunity of being heard, उस केस में जब वो डिसीजन दे रहे हैं, उस केस में वो क्वेशी जुडिशियल अथॉरिटीज कहलाती हैं।
इनमें बेसिकली फर्क यह है, जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, इनमें जो प्रोसीजर मेंशन की गई है उसको फॉलो करना जरूरी है, जबकि क्वेशी जुडिशियल अथॉरिटीज को उससे छूट दी गई है ताकि उनका जो वर्क है वो स्पीडी हो सके, कम टाइम में वो अपने काम को निपटा सके, क्योंकि सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीजर है वो काफी लेंथी है और उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्वेशी जुडिशियल अथॉरिटीज जैसे अपीलेट अथॉरिटीज हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं, ये सब क्वेशी जुडिशियल अथॉरिटीज कहलाती है। जीएसटी में जो ऑफिसर हैं, असेसिंग ऑफिसर जो इनकम टैक्स में कहे जाते हैं, यहाँ पे उनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं या एडजुडिकेटर कहते हैं। वाइल मेकिंग, अब हम आगे चलते हैं इसमें, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वाइल मेकिंग एन ऑर्डर अफेक्टिंग दोज राइट्स, these rules are intended to prevent such authority from doing injustice। मतलब सुनवाई का मौका दिया जाए ताकि वो सारी बात कह सके और इनजस्टिस होने से बच सके। बट कई बार क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए केवल बुक्स में फॉलो किया जाता है और हियरिंग भी दे दी जाती है, लेकिन फिर भी आउटराइटली उस बात को रिजेक्ट करके बिना सुनवाई किए जो ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो डिसीजन पास कर देती है। उसके अगेंस्ट में हम अपील में जाते हैं तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का हवाला दे सकते हैं, और साथ में ही अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होते हैं तो डायरेक्टली रिट भी दाखिल की जा सकती है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में। हाई कोर्ट्स में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में, वॉयलेशन के अगेंस्ट में अगर हम रिट दाखिल करते हैं तो कोर्ट के जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, उनके डिफरेंट व्यूज हैं। कई जजेस एंटरटेन करते हैं और कई जजेस अल्टरनेटिव रेमेडी होने के कारण, मानी अपीलेट रेमेडी अवेलेबल होने के कारण हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। लेकिन कई केसेस में ऐसा हो चुका है, एक पेट्रोल सिक्योरिटी सर्विसेज का केस था राजस्थान हाई कोर्ट का ही, उसमें जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, केवल उस बेस पे डिमांड पूरी उन्होंने सेट असाइड कर दी हाई कोर्ट में। तो नेचुरल जस्टिस के वॉयलेशन पे दो तरीके से हमारे पास रेमेडीज अवेलेबल है, अपीलेट रेमेडीज और writ remedies। It is now firmly established that in the absence of excess provision in any statute dispensing with the observance of the principle of natural justice, such principles will have to be observed in all judicial, quasi-judicial and administrative proceedings which involve civil consequence to the parties। जो एक कृपानायक एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का और मेनका गांधी का जो जजमेंट है जो मेंशन किए हुए हैं स्क्रीन पे, इनमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कहा और इसके बाद ही सेटल्ड लॉ हो गया कि हर एक प्रोसीजर में प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना मैंडेटरी है। इसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या? हमने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के तो सुन लिया, लेकिन इसमें क्या चीजें हैं, क्या करना जरूरी अथॉरिटीज के लिए? तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स में मेनली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट है, nobody shall be a judge in his own cause or in a cause in which he is interested। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर्स में हाई कोर्ट के जजेस के लिए आता है कि उन्होंने अपनी सुनवाई से अलग कर लिया। तो अगर कोई जो जज है, जो भी जज है, जज चाहे वो जुडिशियल जजेस हों या फिर जो क्वेशी जुडिशियल बॉडीज हैं जो एज जज काम करती हैं वो हों, अगर वो किसी केस में इंटरेस्टेड है पर्सनली, तो वो उस सुनवाई से खुद को अलग करेंगे, उनको अलग करना होगा। ये अलग बात है कि उनके अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट रहते हैं अथॉरिटीज के, उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी रहते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी कई बार रहते हैं, हमको सुनने को मिलता है, तो वो उसको अलग नहीं करते। बट एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उनको अलग करना पड़ेगा। दूसरा, टू हियर द अदर साइड, दिस प्रिंसिपल इज जनरली फॉलोड। सामने वाली जो पार्टी है, दूसरी वाली जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट में आपने शोकॉज नोटिस जारी किया है, इट इज मैंडेटरी टू हियर दैट पार्टी। इसीलिए पर्सनल हियरिंग दी जाती है कोई भी केस को डिसाइड करने से पहले। और थर्ड है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग ऑर्डर्स और डिसीजंस, कि आपने जो सबमिशंस दिए हैं, जो भी आपने शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई दिए हैं, उन रिप्लाईज को ये अथॉरिटीज की लायबिलिटी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको मैंडेट कर सकते हो कि उन सबमिशंस के सारे जो पॉइंट्स आपने दिए हैं, रिलेवेंट सबमिशन से, उन सबको वो डिस्कस करते हुए और रीजन ऑर्डर पास करें कि क्यों आपके सबमिशंस जो हैं वो उनके हिसाब से सही नहीं है, उनका वो लीगली रीजंस उसमें मेंशन करें। ये कई बार होता है, जनरली बल्कि ऐसा ही होता है, जब ऑर्डर्स रिजेक्ट किए जाते हैं तो हमारे जो सबमिशंस हैं, तो वो जो सबमिशंस को रिजेक्ट कर सकते हैं उनको तो वो मेंशन कर देते हैं, उनका कंटेंशंस तो वो दे देते हैं, रिट्रैक्ट कर देते हैं उनको। लेकिन जो सबमिशंस हमारे फेवर में हैं, बट अथॉरिटीज ये चाहती हैं कि इनको अगेंस्ट पे पास किया जाए,
उस केस में उन सबमिशंस को वो स्किप कर देते हैं और जो सबमिशंस रेवेन्यू के फेवर में है उनको मेंशन करके ऑर्डर पास कर देते हैं। तो अपील में हमें जरूर मेंशन करना चाहिए कि हमारे शोकोज के रिप्लाई में ये सबमिशंस थे, इनमें से इन सबमिशंस को कंसिडर नहीं किया गया और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास किया गया, विदाउट एनी रीजनिंग ऑर्डर पास किया गया, ताकि इसको कंसिडर किया जा सके। अब पर्सनल हियरिंग एंड डिसीजन बाय द सेम ऑफिसर, इसमें एक बात और है, अगर हियरिंग हो गई और उसके बाद में ऑर्डर पास नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार होता है जब कुछ क्रिटिकल मैटर्स होते हैं, तो एक ही केस में एक ऑफिसर ने हियरिंग कर ली और 6 मंथ तक डिसीजन पास नहीं किया, फिर दूसरे ऑफिसर आ गए, तो प्रिंसिपल्स नेचुरल जस्टिस के हिसाब से ये जरूरी है कि जो ऑफिसर्स ऑर्डर पास कर रहा है वो ही ऑफिसर आपकी हियरिंग करे, आपको सुनवाई का मौका दे। अगर आपने पहले वाले ऑफिसर के सामने सुनवाई कर ली है तो उस ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फिर से सुनवाई करे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे और आपकी सुनवाई करने के बाद में फिर डिसीजन पास करे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए या इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए जीएसटी लॉ में कुछ प्रोविजंस इंसर्ट किए हैं, जो हम सेक्शन 73-74 आगे देखेंगे हम। उसमें उन्होंने बाउंड कर दिया कि विद इन द सर्टेन टाइम लिमिट द ऑफिसर्स हैज टू पास द ऑर्डर, जबकि सर्विस टैक्स और एक्साइज लॉ में, कस्टम लॉ में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि इतने समय में ऑर्डर पास करना पड़ेगा, मैंडेटरी कहीं पे भी नहीं था। तो अथॉरिटीज अभी एक केस में, मेरे एक प्रेजेंट केस में जो पेंडिंग है, एक कमिश्नर साहब थे, उन्होंने सुनवाई कर ली, सुनवाई करने के बाद में 2-3 मंथ निकल गए, फिर उनका ट्रांसफर हो गया, फिर दूसरे कमिश्नर आ गए, उन्होंने वापस से हियरिंग दी, हमने वापस से अपीयर हुए, वापस से पूरा केस एक्सप्लेन किया, फिर 2-3 मंथ निकल गए और रिसेंटली वापस उनका ट्रांसफर हो गया। तो अब थर्ड कमिश्नर आएंगे, उनके सामने हमको फिर से प्रेजेंट होके, फिर से सारा केस एक्सप्लेन करके और फिर सुनवाई में हमको अपीयर होना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इनकन्वीनियंस होती है उसको दूर करने के लिए जीएसटी लॉ में सर्टेन प्रोविजंस है वो इंसर्ट किए हैं, जो हम बात करेंगे। जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड है, इसलिए वो अभी इससे बाउंड नहीं है और वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, शोकोज नोटिस आते ही मैं आपको कोशिश करूंगा कि थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल भी हम बात करें कि क्या क्या बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए शोकोज नोटिस के रिप्लाई के टाइम पे, और क्या पॉइंट्स हैं जिनको हमको ऑब्जर्व करना चाहिए और अकॉर्डिंग रिप्लाई बनाना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी पर्सन को उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा जो जब उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया था उस टाइम पे लॉ में ऑफेंस के रूप में दर्ज था। मतलब हम क्या करते हैं जनरली, शोकोज नोटिस जब आता है तो प्रेजेंट शोकोज नोटिस जब भी आता है तो प्रेजेंट पीरियड का जो एक्ट और रूल्स हैं उसमें हम उस सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजन को देख लेते हैं कि इस सेक्शन में इन्होंने डिमांड रेज की और इस सेक्शन क्या बोलता है हमारे ग्राउंड्स निकालने के लिए। बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब शोकोज नोटिस आया है उससे मतलब नहीं है जिस पीरियड का जो इम्प्यूग्ड पीरियड है, हमारे डिस्प्यूटेड पीरियड है शोकोज नोटिस में, उस पीरियड में लॉ क्या कहता था, उस टाइम पे लॉ क्या था। अगर उस टाइम पे वो जो सर्टेन इशू है जिस पे उन्होंने डिमांड रेज की है उस अकॉर्डिंग अगर डिमांड रेज नहीं हो सकती थी तो डिपार्टमेंट वो शोकोज नोटिस कंफर्म नहीं कर सकता और हमें आर्टिकल 20 का हवाला देना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे ही एक केस में 2011 से पहले जो सर्विस टैक्स लेट फाइलिंग की रिटर्न की लेट फीस थी वो 2000 थी। उसके बाद अप्रैल 11 के बाद में 20,000 कर दी। एक केस में 8-9 से लेकर 13-14 तक की रिटर्न्स के लिए लेट फीस के लिए शोकोज नोटिस आया, फिर डिमांड कंफर्म हो गई और उन्होंने पूरे जो पीरियड था उसके लिए 20,000 की लेट फीस इंपोज कर दी। तो हमने फिर अब कंटेस्ट किया कि सर इसमें 2000 की जो लेट फीस है वो अप्रैल 11 तक केवल आप 2000 की इंपोज कर सकते हो, उसके बाद में तो आप 20,000 कर सकते हो, उसके पहले आपको 2000 ही करनी पड़ेगी क्योंकि एट दैट टाइम द मैक्सिमम पेनल्टी वाज, मैक्सिमम लेट फीस वाज 2000 ओनली। तो आर्टिकल 21 के हिसाब से हमको उसमें बेनिफिट मिला और फिर वो लेट फीस जो है दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 2000 ओनली। द सेकंड पॉइंट इज नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी को एक से ज्यादा बार दंड दिया जा सके। ये एक जनरल चीज है। वैसे आपकी एक बार डिमांड रेज हो गई तो उसी चीज पे दोबारा डिमांड रेज नहीं की जा सकती, जैसा वेट अथॉरिटीज कई बार कर देती है, स्टेट वेट अथॉरिटीज। वहां आपने देखा होगा कि उसी पीरियड का वापस से वो जारी कर देते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है तो कई बार ऐसा कर देती है। ये उसी तरीके से है कि अगर एक आदमी को एक बार सजा दे दी तो ये नहीं है कि उसको वापस से फिर सजा दी जा सके।
ऐसा नहीं है कि अथॉरिटीज की जम गई नहीं, वापस इसको परेशान करना है तो वापस से शुरू कर दें। एक बार अगर आपको कन्विक्ट कर दिया, एक बार आपको पनिशमेंट मिल गया, तो दोबारा उसी इशू पे उसी पीरियड के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, आपको पनिशमेंट नहीं दिया सकता। And no person accused of any offense shall be compelled to be witness against himself, कि खुद ही के अगेंस्ट पे बयान देने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसा कई बार सर्च के टाइम पे, सर्च के टाइम पे ऑफिसर्स कर देते हैं, सर्च करते हैं और वो जबरदस्ती उन लिखवा लेते हैं पर्सन से वहां ड्यूरेस में कि इतनी हमने चोरी की है और ये चीज है, मतलब बिना किसी वॉलंटरली की जगह वो उनको प्रेशराइज करके और वो लिखवा देते हैं। तो उस केस में आर्टिकल 23 हमारे काम आता है। बट ये प्रोविजंस जो हैं ये एप्लीकेबल करना बहुत मुश्किल है, ये लॉ में एनश्राइंड है बट इनको प्रूव करना ये सब चीजें बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इनका पूरा बेनिफिट ले नहीं पाते और कई बार टैक्स पेयर्स को हेरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस बारे में अवेयर होंगे तो हम कंटेस्ट कर सकते हैं एट द टाइम, अगर हम अवेलेबल हैं तो इन सब बातों का हवाला दे सकते हैं, ताकि जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जो इलीगल वर्किंग कर रहे हैं, उनको थोड़ा डर लगे और उनको कानून का हवाला देके अपने एसेसीज को, टैक्स पेयर्स को बचा सके। अब हम बात करते हैं रीजंस अदर देन फ्रॉड एटसेट्रा, कि हम कब शोकॉज नोटिस जो है जारी किया जाएगा और क्या उसकी समय सीमा होगी, क्या पेनल्टी के प्रोविजन होंगे, ये हम क्विकली एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रीजंस अदर देन फ्रॉड एटसेट्रा, सेक्शन 73 ऑफ द CGST Act says proper officer shall serve notice to show cause as to why she should not pay the amount of tax is specified and the amount of interest penalty is applicable। शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि क्यों ना आपके अगेंस्ट में ये डिमांड जो टैक्स की है, पेनल्टी और इंटरेस्ट कंफर्म कर दिया जाए। और इसके साथ में DRC 1 जो है, समरी ऑर्डर अंडर फॉर्म GST DRC 1, ये जारी किया जाएगा। DRC 1 इज बेसिकली जो आपकी डिमांड है, उसको जो ऑर्डर है आपका, शॉर्ट में DRC 1 जारी कर दिया जाएगा कि इतना आपका अमाउंट है, समरी ऑर्डर हो गया, समरी शो कॉज नोटिस हो गया है। और DRC 1 के बाद में DRC 1 की पार्ट ए में मेंशन किया जाएगा ये सब बातें कि इतना आपका अमाउंट, इतनी पेनल्टी है। और जो इसका पार्ट बी है वो शो कॉज नोटिस जारी होने से पहले हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उसमें हम रिप्लाई दे दें कि जो डिमांड उन्होंने रेज की है उस डिमांड से हम सेटिस्फाई है या नहीं है, या कहीं हमने वो डिमांड पहले से जमा तो नहीं करा दी, या फिर हम और कुछ कहना चाहते हैं, तो वो हम उसमें जो स्पेसिफिक कॉलम्स हैं वहां हम मेंशन कर सकते हैं। ये बेसिकली लिटिगेशन कम करने का एक तरीका है गवर्नमेंट का, क्योंकि डिमांड रेज होने के बाद में फिर जो एसएससी कंटेस्ट करते हैं और फिर अपील में जाते हैं, उसकी जगह जो इश्यूज हैं जो बिल्कुल क्लियर कट है, अपरेंट मिस्टेक्स हैं, उनको शो कॉज नोटिस जारी होने से पहले ही अवॉइड किया जा सके, ताकि डिमांड रेज नहीं हो और एसएससी को नेसेसरी रिप्लाई नहीं, फाइल नहीं करना पड़े। सर्विस टैक्स में भी ये प्रपोज शो कॉज नोटिस के नाम से उन्होंने लास्ट में जारी किया था। नोटिस जारी होने से पहले प्रपोज शो कॉज नोटिस के बेस पे उनको हियरिंग दी जाती थी और उनसे पूछा जाता था कि आपके प्राइमा फेस या कोई ग्राउंड्स हो तो आप बता सकते हैं। तो उसी लाइट में ये भी इन्होंने यहाँ पे प्रोविजन इंसर्ट किया, एक अच्छा प्रोविजन है ये। इसके बाद में नोटिस बाय प्रॉपर ऑफिसर, आप देखिए जो मैंने आपको भी, हमने पहले डिस्कस किया था कि टाइम लिमिट नहीं थी ऑर्डर पास करने की, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि at least 3 months prior to the time limit to pass order they have to issue the show cause notice। इसका मतलब ये है कि जो लॉ में prescribed time limit है to pass the order, that is 3 year and 5 year for the different kind of cases। I will tell you the things। जब प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि सपरेशन नहीं है, कोई जानबूझ के रिविजन नहीं किया गया है, तब उनको 3 years के अंदर अंदर ऑर्डर जारी करना होता है। और शो कॉज नोटिस उस केस में 3 years एंड होने से 3 months पहले उनको शो कॉज नोटिस जारी करना जरूरी होगा। अब 3 years कब से लिए जाएंगे, तो फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जैसे आप मानिए 18-19 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर 20 से 3 year काउंट होंगे 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 23 तक इससे रिलेटेड कोई डिमांड है इस फाइल से रिलेटेड और उसमें सपरेशन नहीं एग्जिस्ट करता है, तो 3 महीने पहले, मतलब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 30 सितंबर 2023 तक, 2023 तक उनको शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको रिप्लाई का टाइम मिलेगा, हमको रिप्लाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का बेनिफिट मिलेगा, हम हमारे केस को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा प्रोविजन उन्होंने डाला है इसमें कि अगर 3 years में ऑर्डर पास नहीं होता है तो प्रोसीडिंग्स वुड बी डीम्ड एज कंक्लूडेड। मतलब ये एक तरह से पनिशमेंट दिया है। आज तक लॉ में कई जगह ऐसा लिखा रहता था कि आपको 60 days के अंदर रिफंड दिया जाएगा, लेकिन अगर 60 days में रिफंड नहीं दिया जाता है तो क्या होगा,
इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर 3 इयर्स के अंदर ऑर्डर पास नहीं हुआ तो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी और जो डिमांड है वो इटसेल्फ अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगी बिना कुछ किए ही। तो DRC 1 के अगेंस्ट में DRC 2 में हमको नोटिस का रिप्लाई देना, DRC 1 के अगेंस्ट में हम रिप्लाई फाइल करेंगे। और अगर रिकरिंग पीरियड की डिमांड है, जैसे कई बार क्या होता है कि एक इश्यू पे डिमांड रहती है और आप उसको एडमिट नहीं करते हैं, जैसे 3 मंथ्स के लिए कोई डिमांड है, उसके लिए शोकोज नोटिस आ गया और आपने उसका रिप्लाई दे दिया और आप उससे संतुष्ट नहीं हो उस डिमांड से, आप उसको कंटेस्ट करना चाहते हो, अब आगे की पीरियड की भी डिमांड देना चाहता है डिपार्टमेंट, तो वो पहले तो उनको अलग से वापस शोकोज नोटिस देना होता था जो प्री GST रिजीम थी उसमें, बट अब इन्होंने मेंशन कर दिया कि वापस से पूरा शोकोज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दे कैन ओनली इश्यू ए स्टेटमेंट DRC 02 और उसमें वो मेंशन कर देंगे केवल जो डिमांड है वो, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब सेम ग्राउंड्स जो शोकोज नोटिस के लिए गए हैं वो DRC 02 में भी वही ग्राउंड्स हो, तभी ये माना जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट बिफोर नोटिस सर्व। अगर नोटिस जारी होने से पहले ही हमने जो टैक्स और इंटरेस्ट वो जमा करा दिया है तो हमारे पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और हम पेनल्टी से बच जाएंगे। लेकिन इस प्रोविजन को आगे मैं एक बार रेफर करूंगा, वापस से कनेक्ट करूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसका एक एक्सेप्शन भी है। लेकिन अभी हम हमारे लिए इतना ही है कि अगर टैक्स और इंटरेस्ट हमने नोटिस सर्व होने से पहले अगर जमा करा दिया है तो कोई भी शोकोज नोटिस में जो डिमांड प्रपोज की गई है, डिमांड प्रपोज की ही नहीं जाएगी, शोकोज नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। और इसके साथ में एक कंडीशन और है कि हमें जमा कराने के साथ में डिपार्टमेंट को इंटीमेट भी करना पड़ेगा इन रिटर्न कि हमने अमाउंट जमा करा दिया है। अगर आपने उस इंटीमेट नहीं किया तो आपका प्रोसीजर लैप्स मान के डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में शोकोज नोटिस जारी कर सकता है। तो जमा कराने के साथ में हमको डिपार्टमेंट को इंटीमेट भी करना चाहिए कि हमने ये डिमांड थी हमारी, हमारे हिसाब से सुमोटो हमारी बनती थी तो हमने इसको जमा करा दिया है। लेकिन इसका बेनिफिट हमको कब नहीं मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने खुद ने कोई लायबिलिटी एडमिट कर ली, हमारा सेल्फ असिस्ट टैक्स है, या फिर कोई पैसा हमने कलेक्ट कर लिया और जमा नहीं कराया, उस केस में इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको वापस बताता हूं, अगर हमने GSTR 1 में मानिए कि लायबिलिटी एक्सेस शो की है इन कंपैरिजन टू GSTR 3B, इट मींस कि वी हैव एडमिटेड दैट दिस सच अमाउंट इज लायबल फॉर टैक्स अकॉर्डिंग टू अस, और 3B में हमने कम पे किया तो हमारा सेल्फ असिस्ट टैक्स ज्यादा है। अब अगर सेल्फ असिस्ट टैक्स ज्यादा है, या फिर दूसरी कंडीशन है अगर हमने रिसिपिएंट से GST कलेक्ट कर लिया और उस GST को कलेक्ट करने के बाद में जमा नहीं कराया, और ये जो जमा हमने नहीं कराया दोनों सिचुएशन में पैसा, ये जो ड्यू डेट थी जमा कराने की उससे 30 दिन के अंदर भी जमा नहीं कराया। जैसे मानिए 20 नवंबर ड्यू डेट थी इस मंथ का जो टैक्स उसको जमा कराने की, और हमने रिटर्न में तो दिखा दिया, लेकिन 20 नवंबर से 30 दिन के अंदर अंदर भी हमने जमा नहीं कराया या जो कलेक्ट कर लिया वो जमा नहीं कराया, उस केस में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा हमको और 10% पेनल्टी हमको पे करनी पड़ेगी। इन दोनों सिचुएशंस के अलावा अगर कोई इश्यू है और आपको डिटेक्ट होता है वो, और आप अगर बिना शोकोज नोटिस जारी हुए जमा करा देते हो DRC 3 के थ्रू, तो आपको शोकोज नोटिस नहीं आएगा और आप पेनल्टी से बच जाओगे। कई बार ये क्वेश्चन राइज होता है कि 17, 18, 18, 19 में कोई मिस्टेक रह गई तो उसका क्या किया जाना चाहिए। तो उस केस में ये एडवाइजेबल है कि हम DRC 3 से टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा दें ताकि हम पेनल्टी से बच सकें। आफ्टर नोटिस सर्व, अगर नोटिस सर्व हो गया तो, ये तो नोटिस सर्व होने से पहले की बात रही, अगर नोटिस सर्व हो गया और कोई सप्रेशन वगैरह डिपार्टमेंट ने नहीं माना, तब भी अगर आप 30 दिन में जमा करा देते हो नोटिस सर्व होने के, तो कोई भी पेनल्टी पेएबल नहीं होगी, नोटिस कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर जमा नहीं कराते हो और अगर आप रिप्लाई फाइल करते हो DRC 06 में, मतलब जो नोटिस आता है उसका रिप्लाई DRC 06 फॉर्म में जाता है, और अगर रिफंड आपने अप्लाई किया और रिफंड अप्लाई करने के बाद में अगर डिपार्टमेंट ने वो रिफंड एडमिसिबल नहीं पाया तो RFD 8 में शोकोज नोटिस जारी होता है, उसका रिप्लाई हम RFD 09 में सबमिट करते हैं। यहाँ पे हम DRC 06 में रिप्लाई फाइल करेंगे और रिप्लाई फाइल करने के बाद में उसको कंसिडर किया जाएगा, और कंसिडर करने के बाद में अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को लगता है कि डिमांड कम होनी चाहिए तो उस प्रोपोर्शन में पेनल्टी भी कम हो जाएगी, अदरवाइज 10% ऑफ द टैक्स डिमांडेड वुड बी कंफर्म्ड एज ए पेनल्टी। ठीक है, अब देखिए जो आपको बता रहा था, जो भी मैंने कहा था कि वो जो उसके प्रोविजो हैं टैक्स और इंटरेस्ट केवल जमा करा की पेनल्टी से बचने के लिए, तो आप देखिए इसमें जो प्रोविजन है सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 says notwithstanding anything contained in subsection 6 or subsection 8, penalty under subsection 9 shall be payable
where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of 30 days from the due date of payment of tax. Means in दोनों situation, in both the situations, if you are not paid the tax within 30 days from the due date, then you are liable for the penalty of 10%. 10% or 10,000 whichever is higher. Means minimum penalty आपकी 10,000 होगी. 10,000 से अगर कम पेनल्टी बन रही है आपकी तो भी 10,000 की पेनल्टी तो आपको लगेगी, और इससे हायर साइड है तो 10% और 10,000 whichever is higher. अब ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर, ऑफिसर शैल इशू, देखिए आप वर्ड यहाँ पे शैल इशू किया गया, इट मींस इट इज मैंडेटरी नेचर. Within 3 years from the due date of furnishing annual return for the financial year to which the shortfall erroneous tax pertains, or within 3 years from the date of erroneous refund. अब रिफंड के केस में क्या होगा, रिफंड के केस में जिस दिन आपको रिफंड जारी हुआ उससे 3 इयर्स के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि वो गलत रिफंड जारी हो गया, एरोनियसली रिफंड जारी हो गया, तो उनका उसके अगेंस्ट में एक्शंस लेके उनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा. 3 इयर्स में बाउंड है, 3 इयर्स के बाद जाते ही, अब ये टेक्निकल ग्राउंड्स हमको जरूर देखनी चाहिए. जनरली हम केवल मेरिट्स पे जाके और उसी में प्लीड करते जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के बेस पे हमको पूरा रिलीफ मिल सकता है, बिना मेरिट्स में गए हमको फायदा मिल सकता है. जैसे सर्विस के केस में होता है, अर्लियर लॉज में भी डेट ऑफ सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. जो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब था शोकॉज नोटिस इशू करने के लिए, वो सर्विस के बेसिस पे था कि विद इन 5 ईयर जो है शोकॉज नोटिस सर्व हो जाना चाहिए, 2.5 ईयर में सर्व हो जाना चाहिए. अगर सर्विस उसके बाद में हुई है तो दे कांट रेज द डिमांड, वो इटसेल्फ ऑटोमेटिकली ही वो डिमांड टाइम बार्ड हो जाती है और वो शोकॉज नोटिस भी नल एंड वॉइड हो जाता है. लेकिन हम ये ग्राउंड्स लेने की जगह और मेरिट्स पे ग्राउंड्स लेते रहते हैं और उन ग्राउंड्स को स्किप कर देते हैं. तो इन ग्राउंड्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उस टाइम पे प्रोविजन क्या था आर्टिकल 21 के हिसाब से, उस टाइम पे जो टाइम बार्ड पीरियड का शोकॉज नोटिस तो नहीं आया है कोई. ये सब बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए और इस हिसाब से बेनिफिट के लिए कंटेस्ट करना चाहिए. ये एक जनरल ओपिनियन है. इसके बाद में सेक्शन 74 बोलता है रीजंस आर फॉर, मतलब जब सेपरेशन है, अगर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि जानबूझ के असेसी ने विलफुली चोरी करने के लिए, टैक्स का इविजन करने के लिए कोई मिस्टेक कमिट की है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, कोई कंप्लायंस नहीं की, तो वो सेक्शन 74 में कवर होगा. सेपरेशन का मतलब है नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इन्फो टू बी डिक्लेयर्ड इन रिटर्न report, document, etc., or failure to furnish information on being asked for by the proper officer. In cases में proper officer shall serve show cause as to why he should not pay the amount of tax as specified and the amount of interest and penalty. अब जो पहले के प्रोविजन डिस्कस किया हमने सेक्शन 73 के, जहाँ पे सेपरेशन नहीं था, इसमें और उसमें फर्क केवल ये है कि इसमें टाइम लिमिट जो 3 ईयर की थी उसमें सेक्शन 74 में टाइम लिमिट 5 ईयर की है, और वहां पे 3 मंथ्स पहले शोकॉज नोटिस जारी होना जरूरी था 3 ईयर से. यहाँ पे 5 मंथ है तो यहाँ पे 6 मंथ पहले शोकॉज नोटिस जारी किया जाना जरूरी है. ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न से 5 ईयर में हमको ऑर्डर पास करना है और उस 5 ईयर से 6 मंथ्स पहले शोकॉज नोटिस जारी करना जरूरी है. अब देखिए वही बात है, अगर सेम इशू है, रिकरिंग डिमांड है आगे की पीरियड की, तो वो नोटिस जारी करने की जगह सीधा स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं DRC 02 और उस बेस पे उसी को नोटिस मान लिया जाएगा. अब पेनल्टीज में जो डिफरेंस है वो अपन बात करते हैं. अगर नोटिस जारी होने से पहले, जैसे मानो डिपार्टमेंट का लेटर आया और उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कोई इशू, कोई उनको पता लग गया कि ये जो है टैक्स की चोरी की गई है, तो नोटिस आने से पहले ही सॉरी, अगर हमने नोटिस का मतलब शोकॉज नोटिस से लीजिएगा आप केवल, अगर सिंपल लेटर आता है, समन आता है, उसको नोटिस नहीं माना जाएगा. शोकॉज नोटिस अलग है, लेटर्स वगैरह सब अलग है. तो इंटीमेशन आ गई और उसमें आपको लगता है कि हमारा बचाव का कोई चांस नहीं है या हमारे पास कंटेस्ट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए, बिफोर इश्यूइंग शोकॉज नोटिस ही हमको टैक्स इंटरेस्ट और 15% पेनल्टी जमा करा देनी चाहिए ताकि वो मैटर कंक्लूड हो जाए और आगे हमको शोकॉज नोटिस सर्व ही नहीं है. अगर मानो हमने पार्शियल अमाउंट जमा करा दिया तो भी अच्छा है, क्योंकि पार्शियल अमाउंट, मानिए कि 1 करोड़ की डिमांड रेज होनी थी और आपको लगा 50 लाख तो हमारा बनता ही था, हमने जमा नहीं कराया, तो हमको एटलीस्ट 50 लाख पे विद इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करा देना चाहिए और बाकी अमाउंट है उसके लिए शोकॉज नोटिस लेना चाहिए, कंटेस्ट करना चाहिए, ताकि जो पेनल्टी लगे वो एटलीस्ट 15% के अलावा जो पेनल्टी लगे वो केवल 50 लाख पे ही लगे, रेस्ट 50 लाख पे ही, कम से कम जो हमने 50 लाख जमा करा दिया उसमें तो पेनल्टी 15% तक रेस्ट्रिक्ट हो सके. अगर नोटिस सर्व हो जाता है तो जैसे जैसे स्टेप बढ़ती जाएगी वैसे से पेनल्टी बढ़ती जाएगी. नोटिस सर्व होने के बाद में अगर 30 डेज में हम जमा करा देते हैं टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो भी नोटिस कंक्लूड हो जाएगा और पेनल्टी जो है वो 25% लगेगी. अब अगर ऑर्डर पास हो गया
और ऑर्डर पास होने के बाद हमको लगता है कि जो ऑर्डर्स डिपार्टमेंट ने दिया है इसको अपील में ले जाना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ कोई रिलीफ मिलने की आपको संभावना नहीं है, तो आप विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर इफ यू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड 50% ऑफ द पेनल्टी, then the notice the matter would be concluded and no other penalty would attend. मतलब 50% पेनल्टी से आपका काम हो जाएगा, चाहे डिपार्टमेंट ने कितनी भी पेनल्टी इंपोज की हो, अगर आप विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर अगर 50% पेनल्टी जो डिसाइड की गई है उसको जमा करा देते हो तो। नेक्स्ट वर्ड्स, अब हम जो मिसलेनियस प्रोविजंस है इसके छोटे छोटे वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और उसको स्टे कर दिया हायर अथॉरिटीज ने, तो जो 3 year 5 year का पीरियड है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और उस पीरियड को आगे बढ़ जाएगा वो पीरियड। जैसे मानिए 3 year था और 1 year तक बीच में स्टे रहा कोई मैटर, तो वो 3 year 4 year हो जाएगा डिपार्टमेंट के लिए। अगर अपीलेट अथॉरिटी है वो ये डिसाइड करती है, जो कमिश्नर अपील्स हैं, एडिशनल कमिश्नर अपील्स हैं, जॉइंट कमिश्नर अपील्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि फ्रॉड, विलफुल सपरेशन या मिसस्टेटमेंट नहीं था, तो क्या होगा, वो 5 year की डिमांड 3 year में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और अकॉर्डिंगली जो पेनल्टी वगैरह है वो सब कम हो जाएंगी अपनी। अब कई बार क्या होता है, अपीलेट अथॉरिटीज को ये लगता है कि नीचे की अथॉरिटीज ने सही से काम नहीं किया या फिर कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जामिन करने से रह गए, तो उन फैक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए दे कैन इशू द डायरेक्शंस एंड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डायरेक्शन the officers are bound to pass the orders. Like in the present situation, sometimes commissioner appeals refers the orders to the adjudicating authority, but after passing of 2 years also they don't decide the matter. Now they have been sacked with this provision. They have to issue the order within 2 years from the date of communication of the instructions issued by the appellate authority. Now opportunity of being heard shall be granted जब भी adverse decision आएगा, SSC के लिए adverse कोई actions initiate हुआ है तो इट इज मैंडेटरी टू गिव पर्सनल हियरिंग। ये हमारी बात हुई गई। अब ऑर्डर्स में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में डिस्कस किया था कि रिलेवेंट फैक्ट्स को और जो डिसीजन के बेसिस हैं उसको उनको मेंशन करना मैंडेटरी है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जैसा सर ने शुरू में बताया था, जो स्पेशल एड्रेस सर ने किया था काबरा साहब ने, उन्होंने मेंशन किया था कि अगर कोई शोकॉज नोटिस में कोई पॉइंट कवर नहीं है, कई बार framers of the show cause notice erred while framing the show cause notice, they miss the points, they miss the grounds which can enhance the demand against the SSC. In that situation, we have the ground that the matters which were not included in the show cause notice, on that matters department cannot confirm the demand. अगर मानिए डिमांड कोई छूट गई है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उनसे, तो बाद में वो ये नहीं कह सकते कि हमने डिमांड की हमारी रह गई थी डिमांड, हम कंफर्म करते हैं। कोरिजेंडम इशू करना एक डिफरेंट चीज है। कोरिजेंडम मतलब अगर वो गलती रह जाती है कोई भी डॉक्यूमेंट में तो डिपार्टमेंटल ऑफिस कोरिजेंडम इशू कर देते हैं, बट वो कोरिजेंडम ऑर्डर के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता है कि डिमांड हमारी शो कॉज नोटिस में कम थी उस पॉइंट पे भी डिमांड कंफर्म कर दे। तो ये भी एक टेक्निकल ग्राउंड है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में अगर हायर अथॉरिटीज कोई मॉडिफाई कर देती हैं ऑर्डर को, तो अकॉर्डिंगली ऑर्डर जो है कम कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी कम हो जाएगी। और क्लियर कट मेंशन है कि अगर 5 year 3 year में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई तो इट विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर अपीलेट ऑर्डर से भी हम सेटिस्फाई नहीं है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इसकी हम बात करते हैं अभी। इसके पहले टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड, अगर हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया और पे नहीं किया है तो शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद में, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद में अमाउंट जो है वो पे कर दिया जाएगा और विद इन ए ईयर ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। प्रोक्योर ऑफिसर जो है 1 साल के अंदर अंदर ऑर्डर इशू करेगा। अब जो स्टे हो जाए, स्टे की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये जनरल प्रोविजन है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब अगर कोई अमाउंट ऐसा है जो हमने एक्सेस कलेक्ट कर लिया किसी एसएससी से जो बनता नहीं था, आपको पता है कि कोई प्रोडक्ट पे, कोई सप्लाई पे 12% जीएसटी रेट है, बट वी कलेक्टेड द जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%. In that case, we have to deposit 18% to the government account. We can't keep the 6% in our pocket. In that case, we have to deposit the complete amount in the government account. लेकिन इस केस में जो पेयर है, जिन्होंने रिसिपिएंट है, जिन्होंने हमको अमाउंट पे किया है, he can claim the refund. जो 6% का है वो रिफंड क्लेम कर सकता है। और जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्स में न जाके जो सोशल वेलफेयर फंड बना हुआ है, एजुकेशन वेलफेयर फंड, जो वेलफेयर फंड बना रखा है गवर्नमेंट ने, उसमें वो चला जाता है, लेकिन वो हमारे लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद में जो अगर हमने, ये भी एक अच्छा प्रोविजन है, जो जनरल मिस्टेक है
जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने कमिट की है, हमारे स्टाफ ने कमिट की है। हमने CGST SGST की जगह IGST पे कर दिया और IGST की जगह CGST SGST पे कर दिया। तो सेक्शन 77 हमको प्रोटेक्ट करता है और इस केस में इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों से हम बच सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट प्रोविजन इज वी हैव टू अप्लाई फॉर द रिफंड। हमको रिफंड अप्लाई करके बाद में जमा करना पड़ेगा और रिफंड की जो टाइम लिमिट दी हुई है लॉ में दैट इज 2 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। तो 2 ईयर के अंदर अंदर अगर हमको पता लग गया कि ये गलती हुई है तो हमको रिफंड अप्लाई करके और फिर सही हेड में रिफंड टैक्स जमा कराना जरूरी होगा। अदरवाइज बाद में आता है तो डिपार्टमेंट कैन आस्क टू डिपॉजिट द IGST इंस्टेड ऑफ CGST SGST एंड वाइस वर्सा, एंड इन दैट सिचुएशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिफंड आल्सो। तो दोनों लॉस हो जाएंगे। तो 2 इयर्स अगर बचे हुए हैं तो हमको रिफंड लेके और सही हेड में अमाउंट जमा करा देना चाहिए। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट जारी जो ऑर्डर जारी हो गया उसके बाद में विदिन 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स द डिपार्टमेंट विल स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स। लेकिन डिपार्टमेंट कई केसेस में जब डिपार्टमेंट को लगता है कि समथिंग माइट बी डिट्रीमेंटल टू द रेवेन्यू, कोई प्रॉपर्टीज है जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है इलीगली बचने के लिए डिपार्टमेंट के एक्शन से रिकवरी से, उस केस में वो पहले भी रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, ये एक अच्छा प्रोविजन है। कई ऐसे होते हैं जो वन शॉट में वन गो में पूरा अमाउंट जमा नहीं करा सकते। इन दैट सिचुएशन दे कैन अप्लाई टू द जुडिशियल कमिश्नर टू पे द टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स एंड द कमिश्नर में अलाउ मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट्स टू पे द अमाउंट। लेकिन अगर आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट बाउंस कर दिया, आपने पे नहीं किया, लेने के बाद में आप फिर से फ्री हो गए कि 24 इंस्टॉलमेंट है धीरे धीरे दे देंगे, और कोई इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट थी वो चली गई, उसके बाद में फिर से आपके प्रोविजन वही लागू हो जाएंगे और आपको इंस्टेंटली आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी आपके अगेंस्ट में। अब अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है, जैसे कई लोग होते हैं, कई क्लेवर पर्सन हैं जो उनके अगेंस्ट में अगर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया लेकिन फिर भी वो बेपरवाह है, उनको कोई टेंशन नहीं है कि कुछ नहीं कर सकता डिपार्टमेंट, और वो क्या करते हैं उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी वो सेल कर देते हैं अगर, तो इस केस में डिपार्टमेंट ने प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया है कि अगर इस तरीके से अगर कोई आदमी गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करने के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है तो वो जो ट्रांसफर है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए वॉइड और उसका कोई ही इफेक्ट नहीं होगा, दैट विल बी नल एंड वॉइड। ये प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1881 है, उसमें मेंशन किया गया है, और उसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई बायर है उसने अच्छे से देख पड़ताल करके और समझदारी से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है बिना कोई फ्रॉड किए तो वो उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता वापस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जीएसटी में प्रोविजन उन्होंने सुपरसीड कर दिया उस प्रोविजन को, उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो ऐसा कोई ट्रांसफर हुआ है डिफ्रॉड करने के लिए, दैट ट्रांसफर विल बी नल एंड वॉइड। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे भी फिर बच नहीं सकते हैं। बट सच ट्रांसफर शैल नॉट बी कंसिडर्ड वॉइड इफ इट इज मेड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन विदाउट पेंडेंसी ऑफ एनी नोटिस। लेकिन ये नहीं है कि हमको लग रहा है कि हमने काफी सारा जो है रेवेन्यू का लॉस कर लिया, हमने काफी सारा पैसा जो है कलेक्ट कर लिया और जमा नहीं कराया गवर्नमेंट में, या फिर हमने पैसा डिमांड हमारी बनती हमने जमा नहीं कराई, और हमको पता है कि कल को डिमांड आनी है, तो करोड़ों रुपए की डिमांड आनी है, तो उससे पहले हमने क्या किया, हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो पूरी ट्रांसफर कर दी, क्योंकि उस टाइम पे कोई नोटिस तो था नहीं पेंडिंग, और एडिक्वेट कंसिडरेशन भी हमको मिल गया, जो बायर है उसने दे दिया। उस केस में जो ट्रांसफर है वो वॉइड नहीं होगा। तो अगर किसी को इस तरीके से करना है तो उसको नोटिस आने से पहले ये काम कर लेना चाहिए, अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो सेल करके, और फिर जो है नोटिस का इंतजार करना चाहिए। एक बार नोटिस आ गया उसके बाद में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो फिर डिपार्टमेंट से हम बच नहीं सकते, वो प्रॉपर्टी नल एंड वॉइड हो जाएगी ट्रांसफर किया हुआ। टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, ये क्लियर है कि किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन सबसे पहले जो जीएसटी है वो डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगी, बाकी जो क्रेडिटर्स हैं और सब चीजें हैं उनको पेमेंट बाद में मिलेगा, चाहे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कुछ भी लिखा हुआ हो। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एडजुडिकेशन एंड अपील्स के बारे में। मैं इसको थोड़ा सम अप करता हूं क्योंकि इट इज ऑलरेडी 5:15, तो हम 20 मिनट 25 मिनट में इसको फिनिश करके फिर अगर कोई डिस्कशन होगा तो हम करेंगे। एडजुडिकेशन एंड अपील्स, स्कोप ऑफ इट्स। देखिए एविडेंस क्या है, बेसिकली जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है अपना, जो जिसको न्याय शास्त्र कहा जाता है हिंदी में, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि जो एलिगेशन एलीज कर रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा है किसी पे, उसकी ये ड्यूटी है कि वो ये प्रूव करे कि ऑफेंस कमिट किया गया है।
जैसे जो हमारा इंडियन पेनल कोड है, जो हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उनमें प्रोसिक्यूशन मानी पुलिस ये प्रूव करती है कि अपराधी ने अपराध किया है। ये जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की होती है। जैसे मानिए कि अगर किसी को चोरी के इल्जाम के लिए अरेस्ट किया गया है फॉर द थेफ्ट, उस केस में चोरी प्रूव करने की लाइबिलिटी पुलिस की है, प्रोसिक्यूशन की है कि दैट पर्सन, सच पर्सन हैज अफेक्टेड द थेफ्ट। लेकिन यही जुरिस्प्रूडेंस है। लेकिन जो जीएसटी लॉ है, इसमें जुरिस्प्रूडेंस को पूरा उल्टा कर दिया गया है और इसमें ये बोल दिया कि जो डिपार्टमेंट तो केवल एलिगेशन लगा देगा कि आपने ऐसा किया, हमें ऐसा लगता है कि आपकी तो डिमांड है। अब आप ये प्रूव करो कि आप गिल्टी माइंड नहीं हो या आपने चोरी नहीं की। तो ये बिल्कुल उल्टा प्रोविजन है। एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 101 स्पेसिफिकली कहता है कि जो एलिगेशन लगाता है, जो एलीज करता है, ही इज बाउंड टू प्रूव दैट एलिगेशन, he is bound to prove that without any confusion, without any doubt, that offense was committed. But unfortunately GST में डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो हैं उनको केवल एलिगेशन लगाने हैं, बाद में प्रूव करने की सारी जिम्मेदारी एसएससी पे है। लेकिन जो प्रोविजन है वो मैंने आपको बता दिया, जो है उसमें हमको बेस्ट करना है। The appellate tribunal shall not, while disposing of any proceeding before it or an appeal before it, be bound by the process laid down in the Code of Civil Procedure. लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि ट्राइब्यूनल तक किसी भी अथॉरिटी को, ट्राइब्यूनल को, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, या फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटर्स हैं, उनको कहीं ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करें। बट अगर हम हमारे मैटर को हाई कोर्ट में ले जाते हैं, इन दैट केस फिर डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि एलिगेशन जो उन्होंने लगाए हैं वो एलिगेशन सही है और उनको ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि ये लिटिगेशन को बढ़ावा देता है काफी, और जो टैक्स पेयर्स हैं सभी लोग हाई कोर्ट तक नहीं जा पाते, इतना कॉस्ट बियर नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं एडजोर्नमेंट की। किसी भी केस में 3 से ज्यादा एडजोर्नमेंट नहीं दिए जाएंगे। फर्स्ट हियरिंग में आप अवेलेबल नहीं हो पाए तो आप सेकंड हियरिंग आपको दी जाएगी, सेकंड के बाद में थर्ड हियरिंग दी जाएगी, बट नॉट मोर देन 3 हियरिंग्स। मैक्सिमम 3 हियरिंग्स कैन बी ग्रांटेड बाय द क्वेश्चन जुडिशियल बॉडीज। अब सिस्टम क्या है कि सबसे पहले ऑर्डर आने के बाद में 3 मंथ्स के अंदर हम फाइल कर सकते हैं अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है वो जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक का कोई भी अधिकारी एज ए अपील काम करता है, कर सकता है। पहले एडिशनल कमिश्नर था, उसको जॉइंट कमिश्नर तक कर दिया। अर्लियर लॉज में डायरेक्ट टैक्स रिजीम में सेंट्रल टैक्स में जो एक्साइज सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स था उसमें केवल कमिश्नर अपील्स होते थे, कमिश्नर रैंक के अधिकारी अपील सुन सकते थे। बट अब उन्होंने, और वेट में पहले भी जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर सुनवाई करते थे, लेकिन जीएसटी में उन्होंने जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दोनों को ऑथराइज कर दिया, दे कैन हियर द अपील। ऑर्डर पास होने के बाद में, फर्स्ट ऑर्डर पास होने के बाद में अपीलेट अथॉरिटी के सामने 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपील दाखिल की जा सकती है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने भी 3 मंथ्स के अंदर अपील दाखिल हो सकती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल राजस्थान में भी इन्होंने नोटिफाई कर दी है, और राजस्थान में भी एक अपील, एक अथॉरिटी ना होकर 2 ट्राइब्यूनल इन्होंने जो है नोटिफाई की है, जयपुर में, एक जोधपुर में। पहले हमको हमारे केसेस के लिए, डायरेक्ट टैक्स केसेस के लिए दिल्ली जाना पड़ता था क्योंकि जयपुर में कोई ब्रांच नहीं थी, बट अब इन्होंने हर एक स्टेट में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, वो ही केसेस केवल जो नेशनल ट्रिब्यूनल बनेगी जीएसटी की उसमें ले जाए जाएंगे। वो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई केस है, जैसा हमने एडवांस में डिस्कस किया था, अगर 2 स्टेट जहां इन्वॉल्व हो गए, उस केस में अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो स्टेट की जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, वो उस केस को हियर नहीं कर सकती, उस केस की सुनवाई नहीं कर सकती हैं। दैट केस कैन ओनली बी लॉज्ड बिफोर द नेशनल बेंच ऑफ जीएसटी दैट विल बी शेड्यूल्ड इन दिल्ली, एंड अदर रीजनेबल बेंचेज विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन। ये क्लियर है। और राजस्थान में जयपुर और जोधपुर दोनों में बेंच आ चुकी है। इसमें भी जो टाइम लिमिट है फाइल करने की वो 3 मंथ्स की अपील फाइल करने की, और हाई कोर्ट में अपील फाइल करने की टाइम लिमिट है 180 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट, डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर अदर, जिस दिन आपको मिला उस दिन से 180 दिन। और उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट अगर ये मेंशन कर देता है कि ये जो ऑर्डर है इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और कुछ ऐसा क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हम अपील फाइल कर सकते हैं। और इसका एक अदर ग्राउंड भी है जो आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस को सुनवाई कर सकता है, तो उसके थ्रू भी हम सुप्रीम कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी जो ग्राउंड्स लिए जाएंगे, जो केसेस जाएंगे, वो केवल पॉइंट ऑफ लॉ पे ही हाई कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। अगर कोई
पॉइंट ऑफ फैक्ट है, डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट है, उस केस में हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा उस एप्लीकेशन को, केवल कोई लॉ का पॉइंट है उसी पे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। फैक्चुअल ग्राउंड्स जो हैं उनको, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उनके लिए वो जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो है, हाई कोर्ट में केवल लीगल ग्राउंड्स ले जाए जा सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे 6 मंथ लिखा हुआ है। अगर कोई डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने आपके फेवर में डिसीजन पास कर दिया, लेकिन कमिश्नर को ये लगता है कि ऑर्डर गलत पास किया गया है, मिली भगत करके पास किया गया है, या फिर डिट्रीब्यूटल टू द रेवेन्यू है, कोई मिस्टेक हो गई इनएडवर्टेंटली, उस केस में 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है रिविजनल अथॉरिटी है, रिविजनल अथॉरिटी उसको रिव्यू करके वो डायरेक्शन इशू कर सकती है डिपार्टमेंट के ऑफिसर को जिन्होंने ऑर्डर पास किया है कि आप एसएससी के अगेंस्ट में अपील फाइल करो, और इसी तरीके से ट्राइब्यूनल में होता है। अब हम बात करते हैं अपीलेट अथॉरिटी जो है, एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में फाइल अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी इन फॉर्म जीएसटी APL 01। APL 01 एक ही फॉर्म है, शोकॉज नोटिस में 2 फॉर्म थे रिफंड के लिए, जो है RFD 08 भी था और DRC 01 भी था, लेकिन अपील फाइल करने के लिए एक सिंगल फॉर्म है जिसको APL 01 नाम से जाना जाता है, और 3 मंथ्स में हमको अपील फाइल करनी पड़ती है। अगर कोई आपका ग्राउंड था जिसने प्रिवेंट किया आपको अपील फाइल करने से, तो 1 मंथ के डिले को कमिश्नर या फिर अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, हुएवर सो, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, वो उस केस में 1 मंथ का आपको कंडोनेशन ग्रांट कर सकते हैं। मींस मैक्सिमम 4 मंथ्स में आप अपील फाइल कर सकते हो अगर अपीलेट अथॉरिटी अलाउ करे तो, अदरवाइज आपके पास जो टाइम लिमिट है 3 मंथ्स होंगे। अब स्टेप्स टू फाइल अपील, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट भी है इसके, कैसे हमको अपील फाइल करनी है। दिस इज वेरी सिंपल। अर्लियर वी हैव टू फाइल द अपील इन ऑफलाइन मोड, but now they have enacted the facility to file the appeal in online mode, but still there are some situations, there are some procedures which we have to follow in the offline mode, that I will tell you. सबसे पहले जीएसटी पोर्टल में जाके यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशंस में हमको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में हमको अपील टू अपीलेट अथॉरिटीज सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब अगर आपका पहले से कोई आपने अपील फाइल कर रखी है तो आप उसमें सर्च कर लेंगे, अदरवाइज आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको वो पूछेगा कि आपका ऑर्डर जो है जारी किया गया आपके अगेंस्ट में, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर इज दैट। जैसे आपका मानो कि ईवे बिल के केस में आपने ईवे बिल का कोई कमी थी और ऑर्डर पास कर दिया अथॉरिटीज ने, या फिर कोई और ऑर्डर पास किया है, तो जैसे डिमांड ऑर्डर आपका है या रजिस्ट्रेशन से कैंसिलेशन से रिलेटेड ऑर्डर है, तो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ऑर्डर नंबर डालते ही जो ऑर्डर पे लिखा हुआ आता है सर्च करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि उसमें क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे है, और फिर आप जो है अपील के ग्राउंड्स को मेंशन करके अपील्स आप फाइल कर सकते हो, अपील्स ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये ग्राउंड क्योंकि स्टार्ट हो चुका है ये फाइल करना, फाइल करने पे किस तरीके से व्यूज आते हैं, किस तरीके से जो है वो शो किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ एक बार। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? 1 मिनट सर, मैं अभी करता हूँ वापस कनेक्ट। एक मिनट होल्ड रखिएगा प्लीज। जी अब देखिए आप, मैं आपको वापस स्क्रीन चालू करता हूँ मेरी। यस, ये जीएसटी APL 1 है जो हम ऑनलाइन फाइल करने के बाद हमको मिलेगा। ये एक्नॉलेजमेंट है जो जनरेट होता है, जैसे हम अपील फाइल करेंगे तो ऑनलाइन ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। लॉ में लिखा हुआ है कि तुरंत एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना पड़ेगा, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट होगा वो, और प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने के बाद में साथ में जो हम ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसमें जो फॉर्म APL 1 है वो जिस तरीके से दिखाई देगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका APL 1 का फॉर्म है जो आप ऑनलाइन फाइल करने के बाद में सर्च करेंगे तो ये फॉर्मेट वहां जारी हो जाएगा। ये बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया इन्होंने, ज्यादातर डिटेल्स जो पहले से अवेलेबल सिस्टम पे है वो डिटेल्स आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, केवल जो लिमिटेड डिटेल्स है वही आपको फिल करनी है। जो डिटेल्स आपको फिल करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एनेक्सर है जो वहां पे मेंशन किया हुआ है, वर्ड कॉपी आप उसकी डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद में इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो लिमिटेड पॉइंट्स हैं जो ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम ने नहीं लिए, वो पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे और वो हमको यहाँ मेंशन करने हैं। मेंशन करने के बाद में विदाउट सिग्नेचर, क्योंकि रूल 26 बोलता है कि EBC से अगर आपने सिग्नेचर कर दिए, वेरीफाई करवा दिया,
then there is no need to again get the signature and submit the hard copy. But जो hard copy अभी भी जो हमको आगे भी हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, वो हार्ड कॉपी है जो ऑर्डर है हमारा, जो ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर की, एक मिनट में ओपन कर लूं, उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी हमें सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 7 डेज। मींस अपील फाइल 3 मंथ्स के अंदर हमको अपील फाइल करनी है जिस दिन हमको ऑर्डर मिला उस दिन से। अगर मानो ऑनलाइन ऑर्डर आया है, ऑनलाइन ऑर्डर है, तो जिस दिन हमको ऑर्डर जारी हुआ उस दिन सर्विस मान ली जाएगी, उस दिन हमको ऑर्डर मिल गया ये मान लिया जाएगा। उसके 3 मंथ्स के अंदर हमको अपील दाखिल करनी है, और 3 मंथ्स के अंदर अपील दाखिल करने के बाद में 7 डेज के अंदर अंदर सर्टिफाइड कॉपी हमको सबमिट करनी पड़ेगी। सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की हमको जो ओरिजिनल कॉपी है वो ही सर्टिफाइड कॉपी मानी जाएगी। अगर सर्टिफाइड कॉपी अलग से लेना चाहते हैं हम, तो डिपार्टमेंट में हमको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमको सर्टिफाइड कॉपी एक अलग से दी जाए, क्योंकि हार्ड कॉपी ओरिजिनल कॉपी हम हमारे पास रखना चाहते हैं। उस सर्टिफाइड कॉपी को 7 डेज के अंदर आपको जो अपीलेट अथॉरिटीज उनके पास पेश करना है, और फिर आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी कर दिया जाएगा, अपील नंबर आपका इशू कर दिया जाएगा। ये अपील की प्रोसीजर हो गई। इसके बाद में एप्लीकेशन टू द अपीलेट अथॉरिटी, ये वही, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि जो अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर सही नहीं है, या फिर वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है रेवेन्यू को, डिट्रीमेंटल टू द रेवेन्यू है, उस केस में जो कमिश्नर हैं वो डायरेक्शन देंगे अपीलेट अथॉरिटी, जब सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है, अपीलेट ट्राइब्यूनल है, वहां पे अपील फाइल करने का, तो डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता है। लेकिन इसमें एक रिलीफ की बात यह है कि डिपार्टमेंट ने मॉनिटरी लिमिट तय कर दी है। 50 लाख तक अगर कोई डिमांड है, जैसे मानो 50 लाख तक की कोई डिमांड है, तो वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में ले जाई नहीं जा सकती है। तो ये एक बेनिफिट जो है वो एसएससी को दिया गया है। अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने उनकी फेवर में डिसाइड कर दिया और जो क्वांटम ऑफ द केस है वो अप टू द सर्टेन लिमिट, अप टू द डिसाइडेड लिमिट है, तो फिर उसकी फर्दर अपील नहीं हो सकती है। इसके अलावा प्री डिपोजिट का प्रोविजन है। ये थोड़ा प्रोविजन मतलब परवेसिव है, ये गलत प्रोविजन कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि लिटिगेशन करने के लिए, फाइट करने के लिए केस को भी हमको पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो हमारी जो संविधान की जो थीम है कि गरीब को न्याय मिले, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट में है ये, क्योंकि इसमें अगर कोई डिमांड रेज कर दी गई है, डिमांड रेज करने के बाद में ऑर्डर कंफर्म अगर हो गया है, तो उसके बाद में आप अपील फाइल तभी कर सकते हो जब आपने एटलीस्ट 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है। बिना 10% डिपॉजिट कराए आप अपील फाइल कर तो सकते हो, लेकिन वो हियरिंग में नहीं आएगी और उस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्री डिपॉजिट 10% करवाना पड़ेगा, और प्री डिपॉजिट भी 50 करोड़ रुपए तक, इसका जो मॉनिटरी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज 50 करोड़ रुपीस, 25 ऑफ सीजीएसटी एंड 25 ऑफ एसजीएसटी। एंड फॉर द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी दिस अमाउंट इज 100 करोड़। मींस मैक्सिमम अमाउंट जो प्री डिपॉजिट का होगा वो 50 करोड़ और 100 करोड़ होगा, और 10% हर केस में जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने पूरा ही जमा करा दिया तो अलग से जमा कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने जमा नहीं कराया है तो आपको 10% अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। और फिर जमा कराने के बाद में ये एक इसमें अच्छी बात ये है कि प्री डिपॉजिट अगर आपने जमा करा दिया, उसके बाद में अलग से स्टे लेने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले भी जो लॉज थे, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, उसमें ये प्रोविजन था कि अगर आपने प्री डिपॉजिट 7.5% जमा करा दिया तो डेट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड स्टे। बट स्टेट टैक्स में प्री डिपॉजिट भी जमा करवाना पड़ता था, और मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग प्रोविजन था कि प्री डिपॉजिट भी जमा कराना पड़ेगा, और फिर आपको स्टे के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, स्टे की हियरिंग में जाके, और स्टे लेना पड़ेगा अगर ऑफिसर को लगता है स्टे ग्रांट करना चाहिए। और उसके बाद में भी स्टे में भी वो डायरेक्शन दे देते थे कि आपको बॉन्ड और फाइल करना पड़ेगा। तो कम से कम जो स्टेट की जो रेड टेपिज्म था, या जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी अपने लॉज की, लूप होल्स थे, वो सब इसमें खत्म हो जाएंगे, और प्री डिपॉजिट जमा कराते ही सीधा हमको स्टे मिल जाएगा। इसके बाद में अगर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है तो हमको एडिशनल 20% और जमा कराना पड़ेगा। 10% तो प्री डिपॉजिट का फर्स्ट अथॉरिटी के सामने, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने, और फिर एडिशनल 20% ट्राइब्यूनल के सामने। पहले ये काफी कम था अमाउंट, 7.5 और 10% ही था सर्विस टैक्स एक्साइज में, बट इन्होंने काफी इंक्रीज कर दिया है इसको। अपीलेट अथॉरिटी कोई भी जो केस है उसको विद इन ए ईयर डिस्पोजल करेगी उसका। पहले 3-3, 4-4 साल में केस डिस्पोजल नहीं होते थे, अभी भी नहीं हो रहे पुराने केसेस जो हैं, बट जीएसटी के केसेस में इन्होंने क्लियर कट डायरेक्शन दे दिए कि विद इन ए ईयर कमिश्नर अपील, रादर अपीलेट अथॉरिटी हैव टू डिसाइड ऑल द अपील्स विद इन ए ईयर, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील से। तो एक अच्छी बात है कि टाइमली जो है लिटिगेशन खत्म होगा, प्रोसीजर फास्ट होगी और जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा होगा।
अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसमें भी हर एक स्टेट में अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगी, और स्टेट ट्रिब्यूनल और नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल, दो तरह के ट्रिब्यूनल है। नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल जो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेगी, कंसिडर करेगी, रिटेन करेगी, और स्टेट ट्रिब्यूनल बाकी सारे इश्यूज जो है वो डिस्कस करेगी। अब जो मेंबर्स हैं इनमें स्टेट ट्रिब्यूनल में, इसमें जो प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एडवोकेट्स हैं, उनके लिए एक एडवर्स प्रोविजन है। पहले उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो भी मेंबर बन सकते थे, जैसे हमारे जयपुर से भी कुछ मेंबर्स बने, ट्राइब्यूनल में अपॉइंट हुए, लेकिन अब इन्होंने केवल जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं के लिए वो जो सीट्स हैं वो रिजर्व रख दी, और कोई भी जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इसमें जगह नहीं दी कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर बन सकें सर्टेन क्राइटेरिया के बाद में भी। तो दिस प्रोविजन हैज ऑलरेडी बीन चैलेंज्ड बिफोर द हाई कोर्ट इन द रिट इज पेंडिंग, saying that the practitioners should also be allowed to become as a appellate tribunal. Let's see कि क्या होता है, but as of now only जो members state के जो officers हैं, center के officers हैं, they can only become the member of the tribunals. ट्राइब्यूनल राजस्थान में, जयपुर और जोधपुर में नोटिफाई हो गई, जिससे आपने बात की, लेकिन अभी तक फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुई है इसकी। तो कई सारे केसेस ऐसे हैं जो डिसाइड हुए 6 months 8 months हो गए, 1 साल भी हो गया, लेकिन अभी तक उनकी अपील फाइल नहीं कर पा रहे, क्योंकि 3 months का टाइम तो जा चुका, लेकिन उन्होंने एक स्पेशल ऑर्डर जारी कर दिया कि जो 3 months का पीरियड है वो तब से काउंट होगा जब से प्रेसिडेंट फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा ट्रिब्यूनल में। तो अभी तक राजस्थान में फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ये फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी तब से फिर जो पीरियड है वो काउंट होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, जो सारी चीजें हमारी डिस्कस हुई है। जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो कोई भी केस को मॉडिफाई कर सकती है, अनल कर सकती है, उनके पास पूरे राइट्स हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, and they are also bound by the time limit of 1 year from the date of filing the appeal. They also have to dispose of the appeal within a year from the date of filing the appeal, GST appellate tribunal. Now appeal to high court, जो भी GST tribunal के केसेस हैं उनके अगेंस्ट में हम लेके जा सकते हैं, subject to there must be any point of law, जो conflict है वो law पे होना चाहिए, substantial question of law होना चाहिए, in that case we can go before the high court to file the appeal. The good thing is there is no prerequisite to file the appeal before the high court, and for the writs also there is no minimum quantum of amount that is to be deposited. हम directly appeal कर सकते हैं बिना कोई extra deposit कराए, और जो प्री डिपोजिट है वो जमा करने की जरूरत नहीं है। इसमें रिट्स में भी ऐसा ही है, लेकिन जब तक आपको हाई कोर्ट में स्टे नहीं मिल जाता तब तक डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज कैन टेक द रिकवरी एक्शन, दे कैन स्टार्ट द रिकवरी प्रोसीडिंग्स। जनरली वो 3 months के बाद में करेंगी। तो इन केस ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद में हमारे पास 6 months का टाइम लिमिट है अपील लगाने के लिए हाई कोर्ट में, बट द प्रॉब्लम इज 3 months के बाद में ट्राइब्यूनल की जो ऑर्डर के जो अथॉरिटीज हैं दे विल स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स। 3 months से पहले भी कर सकते हैं, बट 3 months बाद तो वो कर ही देंगे। तो हमको जल्दी से जल्दी अपील फाइल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में, सो दैट वी कैन गेट द स्टे ऑन द रिकवरी प्रोसीडिंग्स। इसके बाद में कोई भी इश्यूज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, और सीपीसी के प्रोविजन हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल होंगे। अभी ओनली 25 मिनट्स बचे हैं अपने सेशन में, तो अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 121, आई एम सॉरी, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that burden of proof lies. ये थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी ये चाहता है कि कोर्ट उसकी बात पे बिलीव करे, उसके फैक्ट्स को माने, तो ये जो पर्सन है वो बाउंड है उस फैक्ट को कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये प्रूव करने का जो बर्डन है दैट लाइज ऑन द पर्सन हु आर असर्टिंग, हु आर एलिजिंग। नाउ अगर जिसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि ए कहता है कि बी ने क्राइम किया, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ए टू प्रूव दैट बी हैज कमिटेड क्राइम। दिस इज द वे जो जुरिस्प्रूडेंस हमारा है वो कहता है, बट अनफॉर्चुनेटली जीएसटी में ऐसा नहीं है, और हमको प्रूव करना पड़ता है कि वी आर क्लीन हैंड, और हमने कोई जो प्रोविजन है वो वोलेट नहीं किया। इसी तरीके से नेशनल जो रीजनल बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल है उनके अगेंस्ट में सीधी अपील सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इस पे सीपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अपील फाइल नहीं हो सकती है, जैसे अगर कोई मॉनेटरी लिमिट्स फिक्स कर, जैसे मैंने आपको बताया, उस केस में अपील फाइल नहीं हो सकती है। एसएससीज के लिए भी एक इन्होंने प्रोविजन डाला है कि अगर आपका क्वांटम 50,000 का है, ओनली 50,000 तक का है, तो जो आपकी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है माने ट्राइब्यूनल जो है वो चाहे तो केस को रिटर्न करने से मना कर सकती है,
ये कहते हुए कि भाई अमाउंट बहुत छोटा है और रिलेवेंट पॉइंट नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तो दे कैन डिनाई टू एक्सेप्ट द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, दे हैव द डिस्क्रिशन टू एक्सेप्ट द अपील और डिनाई द अपील। और डिपार्टमेंटल साइड से तो 50 लाख तक का क्वांटम है, इन्होंने जो मॉनेटरी रेस्ट्रिक्शंस डाल रखे हैं, पेक्यूनियरी जुडिशन जो है 50 लाख से ऊपर का कर रखा है, तो उस केस में तो अपील कर ही नहीं सकते वो। The above shall not preclude the officer from filing an appeal in any other case with similar factual legal circumstances। देखो ये बहुत मजेदार पॉइंट है। जैसे मानिए 25 लाख आपकी डिमांड जो थी वो 49 लाख की थी, सॉरी 49 लाख का आपका डिमांड थी, वो आपके फेवर में डिसाइड कर दी और डिमांड ड्रॉप हो गई, अपील ने, फर्स्ट अपील ने ये डिसाइड हो गया। अब कोई दूसरा पर्सन है, उसकी डिमांड 55 लाख की थी। दोनों केसेस में कमिश्नर अपील ने या एडिशनल कमिश्नर अपील ने एसएससीज के फेवर में ऑर्डर पास कर दिए। एक की डिमांड 49 लाख की थी, एक की 55 लाख की थी, बट द फर्स्ट अपील अथॉरिटी सेट असाइड द डिमांड इन बोथ द मैटर्स। अब 49 लाख की जो डिमांड थी उस एसएससी के अगेंस्ट में तो डिपार्टमेंट के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर सके, क्योंकि मॉनेटरी लिमिट 50 लाख की है। बट 55 लाख वाला जो अपीलेंट है, जो टैक्स पेयर है, वो ये नहीं कह सकता डिपार्टमेंट को कि साहब आपने तो 49 लाख वाले केस में अपील फाइल नहीं की और हमारे सेम ग्राउंड्स हैं, तो मेरे को ही आपको क्यों पनिशमेंट देना है, मुझे मेरे अगेंस्ट में क्यों अपील फाइल कर रहे हैं आप। तो उसी मैटर पे, उसी इश्यू पे फैक्चुअल लीगल ग्राउंड्स सेम होने के बावजूद अगर अमाउंट अलाउ करता है, जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं वो आपको अलाउ करती हैं, तो डिपार्टमेंट कैन प्रीफर द अपील बिफोर द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, थर्ड अपीलेट अथॉरिटी, फोर्थ अपीलेट अथॉरिटी। अब कुछ ऑर्डर्स हैं जिनकी अपील की नहीं जा सकती है। An order of the commissioner of the other authority empowered to direct transfer of proceeding from one officer to another officer। जैसे मानो कि आपका कोई पसंदीदा ऑफिसर है और आपको विश्वास है कि ये मेरे फेवर में ऑर्डर पास कर देगा, आपकी बात हो गई उनसे, या आपको लगता है कि वो डिसाइड कर देंगे, उनके जो प्रेसिडेंस रहे हैं, आपको लगता है कि वो फेवर में डिसाइड कर रहे हैं एसएससीज के उस पॉइंट पे, और कमिश्नर को लगता है कि ये ऑफिसर सही से काम नहीं कर रहे हैं या कोई भी रीजन से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया केस दूसरे ऑफिसर के पास में, तो आप इसके अगेंस्ट में अपील लेके नहीं पहुंच सकते कि साहब मेरे को तो ये ऑफिसर अच्छा लग रहा, मेरे को तो जो ऑफिसर पुराने वाले थे वो अच्छे लग रहे थे, उन्हीं के हाथ में मेरी फाइल दो, मैं तो उन्हीं से ऑर्डर करवाऊंगा। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं हो सकती है। एंड ऑर्डर पर्टेनिंग टू द सीजर और डिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी कोई सीजर हो गई डॉक्यूमेंट्स की, तो जो लॉ में प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके बाद में आप ये चाहो कि हम अपील, उसके पहले आप ये चाहो कि अपील फाइल कर दें हम कि हमारा क्यों सीजर किया गया है, तो इसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती है। एंड ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, सैंक्शन प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन। अभियोजन हिंदी में वर्ड है, प्रोसिक्यूशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रोसिक्यूशन इज बेसिकली टेकिंग द केस बिफोर द इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट। There are some situations when the department can initiate the prosecution proceedings for the cases like above 5 crore, if there is a disputed amount is 5 crore and the person involved was of such nature which department feels as per law prosecution can be lodged in that matters, then department takes the matter before the economic offense courts। तो अगर ऑफिसर ने सैंक्शन कर दिया कि इस केस में prosecution should be launched, so we cannot challenge that prosecution order, that this order cannot be the situation doesn't warrant prosecution of the case. This is the discretion of the commissioner, this is the discretion of the proper officer to sanction or deny for the prosecution। इसके अलावा एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80 पेमेंट इंस्टॉलमेंट में अगर आपने कर दिया, आपको लगे कि साहब हमारे तो इंस्टॉलमेंट कम दी है, इन्होंने 24 इंस्टॉलमेंट का प्रावधान है तो 12 इंस्टॉलमेंट दी है या 5 इंस्टॉलमेंट दी है, दी नहीं है तो हमें तो इंस्टॉलमेंट दिलाओ, तो ये जो ऑर्डर है, इस तरह का जो ऑर्डर होगा वो नॉन अपीलेबल ऑर्डर होगा, डिसीजन होगा, और इसकी अपील नहीं कर सकते हैं। देखो डिसीजन और ऑर्डर कई बार वर्ड आता है, हम इससे सोचते हैं एक ही है। ऑर्डर और डिसीजन डिफरेंट थिंग है, सिविल प्रोसीजर कोड में इसको मेंशन किया गया है। ऑर्डर्स तो बेसिकली जो लास्ट में मेंशन होता है कि इतनी इतनी डिमांड आपके अगेंस्ट में रेज की जाती है, इतनी पेनल्टी लगाई जाती है, ये है, वो तो होता है ऑर्डर। तो डिसीजन या जजमेंट जो होते हैं वो होते हैं जो डेस्क्रिप्टिव पूरा ग्राउंड्स हैं, रीजंस दिए गए हैं, सारी चीजें उसमें मेंशन की गई है। रीजन ऑर्डर जो है, रीजन जो ग्राउंड्स हैं उसको बोलते हैं डिसीजन या जजमेंट। मतलब जज करने के बाद में जो डिसीजन दिया गया है उसको बोलते हैं जजमेंट। और जो ऑर्डर है वो लास्ट में उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी, कितना टैक्स लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो होता है ऑर्डर्स।
ठीक है सर। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बिकॉज इट इज ऑलरेडी 5:40। रेलेवेंस ऑफ ड्यू डेट। देखिए ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे अपील के प्रोविजन जो शोकोज नोटिस इनसे भी रिलेटेड है, और साथ में ये वैसे जनरल भी, इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कितने टाइम तक जो है बुक्स रखनी पड़ेंगी, कितने टाइम तक हमको प्रिजर्व करनी पड़ेगी। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि अब हमें बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, क्या कब तक डिमांड रेज हो सकती है, वो तो हमने चर्चा पहले ही कर ली कि ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 5 ईयर मैक्सिमम डिमांड कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द एसएससी। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स क्या है? Every registered person required to keep and maintain books of accounts or other records in accordance with the provisions of subsection 1 of section 35 shall remain them until the expiry of 72 months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records. It says कि अगर 18-19 की जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है दैट इज 31 दिसंबर 20, तो हमको 31 दिसंबर 2027 तक वो डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे, 72 मंथ तक, सॉरी 6 ईयर तक, मतलब 2026 तक हमको वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज ए पार्टी टू एन अपील or revision or any other proceeding before any appellate authority or revisional authority or appellate authority or court, whether filed by him or by the commissioner, or is under investigation for an offence under sections under chapter so and so. चैप्टर 19 मतलब जो चैप्टर 9 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं सेक्शंस, आप देखिएगा तो चैप्टर 19 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट shall retain the books of accounts and other records pertaining to the subject matter of such appeal or revision or proceedings or investigation for a period of 1 year after final disposal of such appeal or revision और एटसेट्रा। मतलब आपका जो 6 ईयर का टाइम लिमिट है वो तो है, लेकिन अगर कोई केस आपका बाद में भी पेंडिंग चल रहा है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई अपील पेंडिंग है, तो जब फाइनल डिस्पोजल हो जाता है उस केस का, उसके 1 साल बाद तक आपको रखना पड़ेगा। जैसे कोई केस मानिए कि आपका 10 साल से चल रहा है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो, या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां भी पेंडिंग है, तो उस केस में जो 6 ईयर वाला जो प्रोविजन है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। अदरवाइज उस केस में जो पूरा कंक्लूड होगी प्रोसीडिंग्स, उसके बाद भी 1 साल तक हमको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट कभी भी उनको कॉल फॉर कर सकता है। और जो रेलेवेंसी जो डॉक्यूमेंट्स की है वो शोकोज नोटिस के हिसाब से हमने देख ही लिया। ये हमारे जो टॉपिक्स थे वो अपील का बेसिक टॉपिक था, और हमने इसको विद इन टाइम कंप्लीट कर लिया क्योंकि इट इज ओनली 5:43। Now we can discuss the matters which we can discuss other topics. थैंक यू सो मच रवि सर। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं हम अभी क्वेश्चन। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स, अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड कर सकते हैं, सो वी कैन टेक अप क्वेश्चंस। सर कुछ ऐसा समझा दिया मैंने कि या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया या फिर कुछ ज्यादा समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। रवि भाई आपने बहुत बढ़िया समझाया। So Ashish ji, I think there is no question at all. कुछ क्वेश्चंस हैं सर, वो मैं आपको पर्सनली भेजता हूँ, मेरे पास पर्सनली मैसेज आए हैं तो मैं आपको वहीं पे करता हूँ, आप उनको बाद में रिप्लाई कर दीजिएगा। ओके ठीक है सर। आपको जो क्वेश्चंस आप मुझे मैसेज से करेंगे मैं उनको रिटर्न बना के फिर रिप्लाई कर दूंगा उनका। ओके ओके सर, ओके सर, ठीक है ना सर? हाँ हाँ, थैंक यू एवरीवन, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स, शरद सर, रवि सर फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you all. I think I'm also thankful to all of you for giving me this opportunity। जो हमारे डायनामिक लीडर हैं अनिल यादव जी,
उन्होंने आज ये इनिशिएटिव लिया और ये टाइम दिया, तो आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पैशनेट हियरिंग दी मुझे और इतने टाइम तक उन्होंने सुना, मुझे डिस्कशन किया और बात समझी, उनके लिए भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Okay, sir. I think we can now conclude the meeting, sir. Yes.